all, a big thank you for being with us this Sunday morning. I think some issues with the voice. नरेंद्र सर का मैसेज है कि हिंदी में सेशन हो सकता है क्या? तो नाउ लिसन. People will ask me to talk in English, and lot of people will ask me to talk in Hindi. So I want to tell you that for most of the time in this session today, unfortunately or unfortunately, we are going to stick with Hindi. Now, Hindi पे stick करने के सिर्फ दो reasons है. There are only two reasons to stick to Hindi. Number one, I have been brought up in the northern part of India, so I'm slightly more comfortable with Hindi. And other big reason why we conduct our sessions in Hindi is that we have our intensive program. So हमारे एक awareness program होते हैं जो आज आप कर रहे हैं. This awareness program in itself will tell you how to take decisions in stock market, how to make a plan for yourself. तो ये plan, ये awareness program करके भी आप life में investing start कर पाएंगे. But we also have our intensive programs, and those intensive programs are pre-recorded in Hindi, क्योंकि वो हिंदी में recorded है, इसलिए आज का session भी अधिकतर हम हिंदी में ही करेंगे. Now, but sincere apologies to the English speaking audience, but I can promise you that we have been doing these sessions for last 11 years now, through seminars and through webinars. I can promise the English speaking audience, even they would be able to understand the gist of the session. So what I'll try to do is, whenever I talk about important concepts, I'll talk about those concepts in English as well. Whenever I talk about numbers, I'll try to talk about numbers in English. Abhi जब हम start करेंगे, I completely understand Mahesh sir, and like I said, you would be able to understand the gist of the session today. But क्या होगा कि जब मैं starting में start कर रहा हूँगा, तो हम जैसे लोगों का problem क्या है, जो हमने हिंदी में याद कर लिया है वो हिंदी में हो गया है. Whatever I say in English, that I remember in English. तो मेरे लिए switch करना बहुत मुश्किल हो जाता है. People like me who are not very good at languages, उनके लिए स्विच करना बहुत मुश्किल होता है. तो बहुत सारे लोग देखेंगे मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश में बोल रहा हूं, तो वो बोलेंगे हिंदी बोला था लेकिन बोल नहीं रहे हैं. तो विद इन 5-10 मिनट्स विल स्विच टू हिंदी. बट द इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, लाइक आई सेड, would be able to understand what I'm saying. And I sincere apologies to the English speaking audience. I completely understand that if I have to spread financial literacy in the country, which we are trying to do for last 11 years, we should have these sessions in English as well. And very soon or in future, we might do that. At least we might start having subtitles in our programs and all those things. So very quickly, let us first try to talk about the things that we are going to cover in today's session. So we are going to start with the very basics of investing. Now I keep on saying that I talk to traders, investors all over the world. Being a CFA, being a CMT, मैं सारे लोगों से बात करता हूँ. And what I've realized is that a lot of people know a lot of things about the stock market,
but very few people understand the ABCD or basics of investing. So we will start with the very basics of investing and we'll try to raise the bar like anything in next 30-40 minutes. So एकदम basic से start करेंगे and we'll tell you that if you are a know nothing investor, how can you participate, how can you start investing in India's growth story, वो उसके बारे में बात करेंगे. ना अधिकतर जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, या स्टॉक मार्केट में क्या बाय करना चाहिए, ये स्टॉक बाय करूं, ये सेक्टर बाय करूं. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस मिस्ट्री टुडे, दैट इफ यू आर अ नो नथिंग इन्वेस्टर, एंड व्हेन आई से नो नथिंग इन्वेस्टर, दैट डज नॉट मीन you are a beginner. No nothing investor could also mean that you have been investing for decades but you actually don't know what is the right way to invest. So we are going to tell you that if you are a know nothing investor, if you don't know much about investing, what can you buy today and start investing in India's economy. तो उसके बारे में बात करेंगे. In the last 30 minutes we are going to talk about relatively more fruitful thing, which is when to buy and when to sell. अभी तक मैंने जो बात की है, अभी तक मैंने जो हम बात की है कि हमें क्या बाय करना चाहिए, व्हाट डू आई बाय, मुझे क्या बाय करना चाहिए मार्केट में, ये कल क्वेश्चन है. But the other important question is when do I buy and when do I sell? So in the last 30 minutes we are going to talk about relatively more useful and complex thing, which is when to buy and when to sell. जो चीज खरीदनी है वो चीप कब है और एक्सपेंसिव कब है, उसके बारे में भी बात करेंगे. We are also going to talk about FLIP, which is financial literacy intensive program. We do have our intensive programs which are paid programs, उनके बारे में भी बात करेंगे. But in today's session itself we are going to make financial plans. When I say financial plans, what do I mean? So basically what I mean is कि आज सेशन करने के बाद if you are in your 20s, 30s, 40s, 50s, 70s, कोई भी एज ब्रैकेट में हो, आपके मन में क्वेश्चन क्या होगा, यार हमने ये सब सीखा but how do I implement this in my life? So I'm going to make financial plans today, that if you're 20, how would you use the knowledge that you have gained today in this webinar and start investing? If you are in your 40s तो कैसे करें, 60s वाले कैसे करें, तो अलग अलग एज ब्रैकेट के लिए हम फाइनेंशियल प्लान्स बनाएंगे. We are also going to share with you the step-by-step way of how to start investing in the stock markets from today. आज से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे. And in the last 30 minutes we are going to have question answer sessions. The Q&A sessions are going to be pretty long. यहाँ पे हमने लिखा है 30 minutes, but it can last for as long as an hour. So I consider this my moral responsibility to answer each and every question of yours. तो हम बहुत लंबा Q&A session रखेंगे. For the first 2.5 hours it is going to be a monologue. मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है important है आपके लिए सीखना. जब आप वो समझ जाएंगे, then we will open the So without wasting any further time, let us start. कन्वर्सेशन शेयर करना चाहता हूं जो मैं बहुत यंगस्टर्स के साथ ये कन्वर्सेशन करता हूं. So lot of youngsters come up to me and say, Varun, I want to become a great investor. What education qualification do I need to become a great investor? अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई लिखाई की होनी चाहिए? And I often ask these people, have you done your 5th grade? पांचवी की हुई है? Because if you have done your 5th, that is enough. That is all that you require to become a great investor. Now these people think that I'm kidding. और वो बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, 5th तो किया ही हुआ है. इनफैक्ट वी आर प्लानिंग टू डू आवर मास्टर्स. मैंने बोला कौन सा मास्टर्स? बोला मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CFA, CMT, मास्टर्स इन फाइनेंस, so that we can understand the intricacies of investing in stock market. And all I have to say to these people is that do any damn thing on the planet, कुछ भी कर लेना, just make sure that if you want to become a great investor, you don't do your MBA. बस ये MBA या मास्टर्स मत कर लेना, बाकी सब चल जाएगा. Now बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये क्या बोल रहे हो. Now I myself come from this IIM Ahmedabad background. Now I'm alumnus of IIM Ahmedabad and I very clearly understand why we Warren Buffett fans keep on saying ये मास्टर्स मत कर लेना. And the reason why we say this is we believe that highly educated people have this big problem of analysis paralysis. यानी कि वो बहुत समझदार होते हैं, they are very good at debates, they are very good at discussions, but when it comes to take decisions, they generally end up into analysis paralysis. यानी इतना एनालिसिस कर लेते हैं कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते. Now what is analysis paralysis?
to explain that, I'm going to share a recent conversation that I had with my father. My father is one of the most learned people that I know on the planet. He has done his engineering and MBA from some of the premier institutes in the country, and I can still see the problem of analysis paralysis in him. तो ये क्या होता है इस कन्वर्सेशन से आपको समझ पड़ेगा. सो मेरे फादर को जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, he generally gives me a call and says, वरुण बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ मदद कर सकता है क्या. तो ये कन्वर्सेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये करीब 4-5 साल पहले की बात है. तो इन्वेस्टिंग की दुनिया वाले जो लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए 4-5 साल जो होता है वो काफी रिसेंट फिनोमिना होता है. तो 4-5 साल पहले मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और बोला, वरुण आई वांट टू मेक अ बिग इन्वेस्टमेंट, कैन यू हेल्प मी विद फ्यू थिंग्स. तो मैंने बोला पूछो क्या पूछना है. तो मेरे पापा ने बोला पहले तो मुझे ये बता दैट व्हाट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डूइंग दीज डेज विद इंटरेस्ट रेट्स. क्या वो इंटरेस्ट रेट्स नीचे कर रहे हैं या इंटरेस्ट रेट्स ऊपर कर रहे हैं. तो ये 4-5 साल पहले की बात है. तो मैंने अपने फादर को बताया दैट आरबीआई हैज बीन रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स for the last 4-5 times in the last 1.5 year. तो मैंने बताया 1.5 साल में 4-5 बार उन्होंने नीचे कर दिया है. Now what I want you to think is, why do central banks reduce interest rates? Interest rates नीचे करके वो क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो let us try to understand that. When central bank takes interest rates lower, it becomes easier and cheaper for people to borrow money from the bank. क्योंकि it becomes easier and cheaper, so it becomes easier and cheaper to buy a car. It becomes easier and cheaper to buy a house क्योंकि लोन सस्ते हो गए. And it becomes easier and cheaper for companies to borrow money and start expanding their business. मतलब जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे होते हैं तो लोग बैंक से पैसा लेते हैं और खर्चा करते हैं. जब वो खर्चा करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो खरीदना बेचने की एक्टिविटी है इकोनॉमी में, वो बढ़ जाती है. तो ये इकोनॉमी जब भी आपकी स्लो हो जाती है, उसको किक स्टार्ट करने के लिए, पुश करने के लिए सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट नीचे ले जाते हैं. तो जब मैंने अपने फादर को ये बताया, उन्होंने बोला दैट्स ग्रेट न्यूज. मैंने उनको बोला क्यों पापा. उन्होंने बोला देखो, अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे होंगे तो लोग लोन लेंगे, खर्चा करेंगे, कंपनीज ज्यादा सामान बेचेंगी. अगर वो ज्यादा सामान बेचेंगी तो उनकी सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी. तो मैंने बोला हो सकता है पापा, जो आप बोल रहे हो वो सही है. फिर मेरे फादर ने बोला ये इंडिया को छोड़, टेल मी व्हाट्स हैपनिंग विद अमेरिका. यूएसए इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या कर रहा है. तो 4-5 साल पहले की बात है और मैंने उनको बताया पापा, अमेरिका हैज बीन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स for the last 4-5 times in the last 1.5 year. इंडिया इंटरेस्ट रेट नीचे कर रहा था, अमेरिका इंटरेस्ट रेट ऊपर कर रहा था. नीचे करने से क्या फायदा होता है, लोग लोन लेके खर्चा करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है. बट इंटरेस्ट रेट्स ऊपर क्यों करती है कोई भी कंट्री, उसको समझने के लिए वी विल हैव टू गो बैक टू द 2008 यूएस हाउसिंग क्राइसिस, जिसको लीमन क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस, जिस भी नाम से अगर आप जानते हो तो आपने शायद सुना होगा 2008 का क्राइसिस. 2008 क्राइसिस के बाद लोगों को लगा कि अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा. जस्ट टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स, अमेरिका टुक इंटरेस्ट रेट्स वेरी लो एज 0.25%. सोचिए, नाउ इन एन इकोनॉमी व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर सो लो, तो लोग रातों रात क्या करते हैं, क्योंकि मनी सस्ता हो गया है, पैसा सस्ता हो गया है, बोरो करते हैं, सामान खरीदते हैं. तो जो डिमांड होती है वो ओवरनाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, चीजों की डिमांड बढ़ जाती है. बट सप्लाई रातों रात नहीं बढ़ सकती. मैन्युफैक्चर तो आप रातों रात बढ़ा नहीं सकते मैन्युफैक्चरिंग अपनी. तो उसके वजह से क्या होता है, इफ डिमांड गोज हायर, सप्लाई डज नॉट गो हायर, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी. और महंगाई को कंट्रोल करना एक अलग सीरियस प्रॉब्लम होती है सेंट्रल बैंक के लिए. तो सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, जब वो इंटरेस्ट रेट नीचे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब वो इंटरेस्ट रेट्स नीचे करते हैं और वो देखते हैं कि इकोनॉमी हैज स्टार्टेड टू रिकवर, मतलब इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो वो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो लोगों को ये सिग्नल दें कि लोन हमेशा इतने सस्ते रहने वाले नहीं हैं, आगे लोन महंगे होने वाले हैं, तो उतना ही पैसा लो जो बाद में तुम पे कर पाओ. ऐसा ना हो कि तुमने बहुत सारा लोन ले लिया, बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तुम अपनी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे और लोन पे तुमको क्या करना पड़ रहा है, डिफॉल्ट करना पड़ रहा है. तो क्या समझे आप इससे कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर तब करते हैं जब उनको इकोनॉमी को सिग्नल देना हो कि भाई अभी रेट सस्ते हैं, तुम बोरो कर रहे हो, बट ज्यादा बोरो मत कर लेना क्योंकि बाद में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं.
तो जब मैंने अपने फादर को ये बताया तो उन्होंने बोला दैट्स बैड न्यूज। मैंने बोला क्यों पापा? उन्होंने बोला इफ अमेरिका इज टेकिंग इंटरेस्ट रेट्स हायर, तो अमेरिका जैसी कंट्री से इंडिया में जो पैसा आ रहा होता है वो आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां लोन महंगे हो गए, इंटरेस्ट महंगे हो गए, तो हमारी मार्केट गिर जाएगी। तो मैंने बोला हो सकता है पापा, जो आप बोल रहे हो वो सही है। फिर मेरे फादर ने अभी भी छोड़ा नहीं, पहले इंडिया के बारे में पूछा, फिर अमेरिका के बारे में पूछा, फिर उन्होंने बोला ये बता चाइना का क्या चल रहा है, तो मैंने चाइना बताया। फिर उन्होंने कुछ जीएसटी पूछा, ब्रेक्सिट पूछा, डीमोनेटाइजेशन पूछा, मैं हर चीज उनको डिटेल में समझाते गया। लास्ट में मैंने उनको ये सब समझाने के बाद पूछा कि पापा आपने मेरे से इतना कुछ पूछ लिया है, मेरे को आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। तो उन्होंने बोला पूछ, क्या पूछना है? मैंने बोला पापा इतना सब सुनने के बाद मेरे से आपने डिसाइड किया है आज मार्केट में खरीदना क्या है? तो मेरे फादर ने बोला देख यार, अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज कॉल्ड एज एनालिसिस पैरालिसिस। यू बेसिकली हैव द हैबिट ऑफ एनालाइजिंग। आपको कॉलेज में बताया है कि बहुत सारा डेटा इकट्ठा करो, डेटा इकट्ठा करके एनालाइज करो, फिर समझ कुछ पड़ता नहीं है और आप हाथ खड़े कर देते हैं और आप इस एनालिसिस पैरालिसिस सिंड्रोम में पड़ जाते हैं। तो मैं क्यों बता रहा था ये कि अगर आप नए हैं, अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता, इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि आपको एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होगा। मैं आपको जो बताते जाऊंगा आपको लगेगा यही सही है, यही करना होगा। People who have been investing for decades, CFAs, CMTs and CAs and MBAs, they might have to unlearn before they start learning and implementing what I'm about to teach you in this webinar. तो अगर आप नए हैं, it's not a disadvantage, it's a huge advantage. So let us now start talking about investing. देखिए, मैंने आपको कहा था वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो अगर मुझे सबसे बेसिक क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया कुड बी व्हाट आर द टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। इंडिया के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं? सभी को पता है, शायद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन एशिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत वेल नोन पॉपुलर इंडेक्स है नोन एज सेंसेक्स। सबको पता है व्हाट इज सेंसेक्स? इट इज अ बास्केट। बास्केट मतलब इट इज अ इंडेक्स। कितने कंपनीज की बास्केट है? इट इज अ बास्केट ऑफ टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज की बास्केट बन जाती है। बट ये डिसाइड कौन करता है कि यही इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं? हाउ इज इट डिसाइडेड दैट दीज आर द टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया? इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलती है? कंपनी का साइज कितना बड़ा है, कंपनी की वैल्यू मार्केट में कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है, भाई 100 शेयर है, एक शेयर की कीमत 10 रुपीज है, तो 100 इंटू 10 1000 रुपीज कंपनी की मार्केट वैल्यू है। इस तरीके से हम इंडिया की सारी कंपनीज की मार्केट वैल्यू निकालते हैं एंड देन वी स्टार्ट रैंकिंग दीज कंपनीज बेस्ड ऑन दैट। जैसे 2020 में अगर मुझे रैंक करना था तो कुछ ऐसा चल रहा था। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए उसका वेटेज ज्यादा है, 14.57% इन द इंडेक्स। इससे क्या समझ पड़ता है? अगर रिलायंस बढ़े या गिरे उसका इंपैक्ट इंडेक्स पे बहुत ज्यादा होगा। फिर एचडीएफसी बैंक 11%, एचडीएफसी, इंफोसिस, आईसीआईसीआई, टीसीएस और भी कंपनीज थी, उनका वेटेज क्या होता जाएगा इंडेक्स में? कम। अब सोचिए, जिन कंपनीज का इंडेक्स में वेटेज कम है क्योंकि उनका साइज रिलेटिवली छोटा है, उन छोटी कंपनीज के बढ़ने या गिरने से इंडेक्स पे कम फर्क पड़ेगा। ज्यादा फर्क किससे पड़ेगा? पहली जो बड़ी कंपनीज हैं उनके बढ़ने गिरने से फर्क ज्यादा पड़ेगा। अब आप लोगों ने देखा होगा दैट दीज रैंक्स कीप ऑन चेंजिंग। कभी रिलायंस नंबर 1 हो जाता है, कभी टीसीएस नंबर 1 हो जाता है। व्हाई डू द रैंक्स कीप ऑन चेंजिंग? कभी आपने सोचा है? बिकॉज द शेयर प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। कभी किसी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है, कभी किसी का शेयर प्राइस गिर जाता है, उसके वजह से रैंक्स बदलते रहते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट नॉट ओनली द रैंक्स चेंज, इवन द कंपनीज चेंज इन द लॉन्ग रन। कंपनियां भी बदल जाती हैं। जैसे 1980 में अगर आप सेंसेक्स देखते तो इसके अंदर कौन सी कंपनीज थी? उस टाइम की टॉप 30 कंपनीज थी। किसी को याद है उस टाइम पे इंडिया की टॉप 30 कंपनीज कौन सी होती थी? आपको शायद सिर्फ वही कंपनीज याद रहेंगी जो आज बची हैं, बट मैं आपको बताता हूं इंडिया की बड़ी कंपनीज कौन सी थी 1980 में। बॉम्बे डाइन, ओसवाल केमिकल्स, डीसीएम श्रीराम, एचएमटी घड़ियां, हिंदुस्तान मोटर्स, ये इंडिया की बेस्ट कंपनीज थी।
Now, what is important to note here is that if you would have bought India's best companies, कहीं सोचिए आराम से बैठ के, if you would have bought India's best companies in 1980 and you are still holding them today, most probably you have not done very well or you have lost a lot of money in stock markets. Why? Because these companies have gone out of business. ये कंपनीज जो उस टाइम की बेस्ट थी उन्होंने ज्यादा अच्छा नहीं किया. इवन दो ये कंपनीज बंद हो गई, इंडेक्स केप्ट ऑन गोइंग हायर, मतलब सेंसेक्स फिर भी बढ़ता ही गया. आप में से कोई बताना चाहेगा, if these companies which were part of index, which were the biggest companies of index at that time, if they didn't do very well, how did index kept on going higher? Index कैसे बढ़ते गया? Because companies which were not doing well, उनका वेटेज इंडेक्स में क्या होते गया? कम, और उनको धीरे धीरे इंडेक्स से बाहर निकाल दिया गया. एंड कंपनीज which were doing well, उनको इंडेक्स में ऐड कर दिया गया. 1980 में किसी को आइडिया नहीं था कि 2022 में HDFCs and ICICIs and TCS and Infosys would be basically ruling the index. वैसे ही 20 years बाद कौन सी कंपनीज इंडेक्स को रूल कर रही होंगी हमको नहीं पता, बट जो भी वो कंपनीज होंगी वो उस टाइम की इंडिया की बेस्ट कंपनीज होंगी. इसका मतलब सेंसेक्स इज नॉट अ स्टैटिक बास्केट ऑफ टॉप 30 कंपनीज. ये कंपनीज फिक्स्ड नहीं रहती. इट इज अ डायनेमिक बास्केट ऑफ टॉप 30 कंपनीज. कंपनीज क्या होते रहती हैं? 30 कंपनीज बदलते रहती है. जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, उसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बेसिकली इसका भी एक बहुत पॉपुलर इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी 50. कैसे बनता है ये निफ्टी 50? इट इज अ बास्केट, इट इज अ इंडेक्स ऑफ हाउ मेनी कंपनीज? द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया. कैसे डिसाइड करते हैं कि यही इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होंगी? अगेन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप बोलते हैं, या मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी. तो हम इंडिया की सारी कंपनीज की मार्केट वैल्यू निकालते हैं. टॉप 30 कंपनीज की लिस्ट निकालें, टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट निकाल ली. पहली 30 कंपनीज दोनों ही में क्या होंगी? दोनों ही इंडेक्स में क्या होंगी? सेम. और जो लास्ट 20 कंपनीज निफ्टी में डिफरेंट हैं, मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं. जो लास्ट 20 कंपनीज हैं जो आपके चैट बॉक्स पे, सॉरी मैं चैट बॉक्स में बताऊंगा कि इसने लिखा है, इनको वॉइस नहीं आ रही, तो ये याद रखिए, जस्ट टू मेक दिस वेबिनार एब्सोल्युटली स्मूथ, आप तीन चीजों का ध्यान रख सकते हैं. एंड टीम, इफ यू कैन राइट टू नीलेश सर if he can use the reconnect button to make sure that he can start listening to the webinar. तो तीन चीजें जो आप ध्यान रख सकते हैं. नंबर 1, try to watch this webinar on your laptop and desktop. That would help a lot. तो लैपटॉप डेस्कटॉप से देख रहे हो तो कनेक्टिविटी इश्यूज थोड़ी कम आएंगी एज कंपेयर टू मोबाइल फोन. एक्सेस नहीं है तो मोबाइल फोन डू. दूसरा थिंग, द अदर थिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इज मेक श्योर दैट यू आर listening to this webinar through a broadband or your Wi-Fi connection rather than your mobile data. तो मोबाइल डेटा से हटा के ब्रॉडबैंड और आ जाइए तो कनेक्टिविटी इश्यूज कम होंगी. और थर्ड थिंग दैट यू कैन टेक केयर इज, जब भी आपको लगे दैट द वीडियो और ऑडियो इज स्टक, you have a reconnect button at the top of your screen. सेंटर में reconnect button, you can click on that reconnect button and you will be back in the session. तो रिकनेक्ट बटन देख लीजिए सब लोग. जब भी आपकी वीडियो ऑडियो स्टक होगी आप उस रिकनेक्ट बटन को दबाइएगा, यू विल बी बैक इन द सेशन. चाहे ऑडियो हो वीडियो हो, यू विल हैव नो इश्यूज. परफेक्ट. तो हमने बोला निफ्टी में कितनी कंपनीज हैं? 50. सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं? 30. पहली 30 कंपनीज तो दोनों में ही क्या होंगी? सेम. और जो लास्ट 20 कंपनीज हैं निफ्टी में, उनका साइज रिलेटिवली क्या होगा? आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं. इनका साइज रिलेटिवली स्मॉलर होगा या बिगर होगा? दे वुड बी रिलेटिवली स्मॉलर, क्योंकि वो छोटी कंपनीज हैं. उनके बढ़ने और गिरने से इंडेक्स पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पहली 30 कंपनीज के गिरने और बढ़ने से फर्क पड़ता है. सो द मोर इंपॉर्टेंट कंपनीज फॉर द इंडेक्स मूवमेंट आर द टॉप 30 कंपनीज. वो तो दोनों ही इंडेक्स में क्या है? सेम. इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, इफ सेंसेक्स गोज अप बाय परसेंट, निफ्टी आल्सो गोज अप बाय परसेंट. इफ सेंसेक्स गोज डाउन बाय परसेंट, निफ्टी आल्सो गोज डाउन बाय परसेंट. व्हाई? Because the constituents of both the indices are nearly same. So in this session, whenever I say Sensex or Nifty, it is one and the same thing. Sensex और Nifty दोनों क्या है? एकदम एक ही चीज है. अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में इस टाइम पे आना चाहिए वो ये है that why do we need Sensex and Nifty? लोग सुबह उठ के क्यों देखते हैं Sensex का है, Nifty का है? तो जब मैं कॉलेज में था, the most accepted answer was that Sensex and Nifty is a barometer for the stock market.
वो ये बताता है कि स्टॉक मार्केट कहां जा रही है। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस डेफिनेशन, एकदम सही है। सेंसेक्स निफ्टी स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर है, बट इस डेफिनेशन की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है? जब मैं बोलता हूं सेंसेक्स एंड निफ्टी इज अ बैरोमीटर फॉर द स्टॉक मार्केट, आपको लगने लग जाता है दैट फॉलोइंग सेंसेक्स एंड निफ्टी इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। जिनको इन्वेस्ट नहीं करना वो क्या सोचते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। आपको लगने लग जाता है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। According to me, Sensex and Nifty is not only the barometer for the stock market, it is actually a barometer of your and my life. It is a reflection of how well an average Indian is doing in life. Let us try to understand how. देखिए इस रूम में I can see about 4,493 people right now in the room, which I first of all would like to thank each one of you for making these sessions such a success. I mean 4,000 5,000 लोग मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि लोग मुझे इतने लोग एक साथ सुन रहे होंगे. Thanks to internet and thanks to all of you for being present in such large numbers. So let us assume there are 4,500 people in this room right now and none of you have ever invested in stock markets. आपने कभी stock market में invest नहीं किया, ना ही आप करना चाहते हैं. But irrespective of your stock market participation, आप चाहे मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ना करते हो, आप सबके पास एक मोबाइल फोन तो है ही. और मान लेते हैं सबके पास भारतीय एयरटेल का मोबाइल फोन है, तो महीने के महीने आप सब भारतीय एयरटेल को क्या पे करते हैं, रेंटल पे करते हैं, जिसके वजह से भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू कहां जाता है, हायर. अगर उनका रेवेन्यू जाता है ऊपर तो लंबे समय में उनका प्रॉफिट भी कहां जाता होगा, ऊपर. अगर उनका प्रॉफिट ऊपर जाता है तो उनका शेयर का प्राइस भी कहां जाता होगा, ऊपर. अब ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग ज्यादा मोबाइल फोन के कनेक्शन खरीदेंगे तो भारतीय एयरटेल की सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा. और सेंसेक्स एंड निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भारतीय एयरटेल भी है. तो अगर भारतीय एयरटेल का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो सेंसेक्स निफ्टी का प्राइस भी बढ़ जाएगा. इसका मतलब इन द लॉन्ग रन सेंसेक्स एंड निफ्टी डज नॉट गो हायर और लोअर when you and I invest in the stock markets. In the long run, Sensex goes up when you and I as consumers buy more mobile connections from Bharti Airtel, when you and I as consumers buy more houses from DLF, more cars from Maruti, more oil from Indian Oil Corporation. जब मैं और आप ज्यादा सामान खरीदते हैं तो इन कंपनीज का रेवेन्यू, प्रॉफिट, शेयर प्राइस बढ़ता है, जिसके वजह से सेंसेक्स निफ्टी भी बढ़ जाता है. तो सेंसेक्स निफ्टी सिर्फ स्टॉक मार्केट का बैरोमीटर नहीं है, ये हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी का बैरोमीटर है, हमारी खरीदने की क्षमता का बैरोमीटर है. अब जब मैं कंजम्पशन की बात करता हूं तो नेक्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज प्रोडक्शन. किसी भी कंपनी की, कंट्री की प्रोडक्शन पता करने के लिए क्या देखना चाहिए, जीडीपी. अब आप में से कई लोग बोलेंगे यार ये इकोनॉमिक्स क्यों समझा रहा है, हम तो आज ये सीखने आए हैं इससे कि आज स्टॉक मार्केट में कहां इन्वेस्ट करना है, तो इकोनॉमिक्स क्यों सीख रहे हैं. बिकॉज मैंने आपको बताया था टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू इन्वेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्ट करें, उसके लिए इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. वंस वी अंडरस्टैंड दैट तो मैं आपको बताऊंगा आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे. उसके लिए क्या करते हैं, जीडीपी समझ लेते हैं. तो व्हाट इज जीडीपी? आप सब लोगों ने जीडीपी का फुल फॉर्म तो शायद सुना ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. कहीं ना कहीं शायद आपने टीवी पे, पेपर में पढ़ा हो. बट व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, वो कर लेते हैं. लेट अस डिफाइन जीडीपी. तो जीडीपी का मतलब क्या है, स्क्रीन पे आपके सामने है. जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री. यानी हमारी कंट्री में जितने का भी सामान बनता है उसकी वैल्यू को ऐड करके बोला जाता है ये इंडिया की जीडीपी है. तो कैसे बनता है, कुछ सर्विसेज बनती हैं, कुछ गुड्स बनते हैं. जैसे कि मैंने कोई कोर्स कराया तो मेरे कोर्स को मैंने जब मार्केट में बेचा तो मेरे कोर्स की फाइनल वैल्यू जीडीपी कर दी जाएगी. किसी ने खाना बनाया तो खाने की वैल्यू जीडीपी में ऐड कर दी जाएगी. किसी ने कार बनाई तो कार की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी. तो हम इंडिया की सारी प्रोडक्शन की, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, सबकी वैल्यू को ऐड करके बोलते हैं कि ये बेसिकली इंडिया की जीडीपी है. अब इंडिया की जीडीपी का साइज कितना है,
2020-21 में कोविड से पहले हमारी जीडीपी का साइज 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास था। मतलब 220 लाख करोड़, उसको भूल जाइए, 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स। 2021-22 में जब लॉकडाउन हुए, लोग घर के अंदर रहे, फैमिली रही, तो यह गिर के 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स आ गया। ज्यादा नहीं गिरा जितना लोग सोचते हैं, जितना लॉकडाउन हुआ, लेकिन हाँ 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स आ गया। और 2021-22 में, सॉरी 2000, ये हमारी जो जीडीपी थी ये थी 2019-20 में, कोविड से पहले की बात कर रहा हूं। फिर ये 2020-21 में वैल्यू नीचे गिर गई और 2.7 हो गई। और 2021-22 में एक्सपेक्टेड है कि हमारी जीडीपी वापस 3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास आ जाएगी। इजी करने के लिए क्या समझते हैं, हमारी कंट्री की जीडीपी करीब करीब 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है। नाउ यू वुड बी सरप्राइज्ड व्हेन आई टेल यू दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पहली 50 कंपनीज हैं जो निफ्टी के अंदर हैं, अगर उनकी मार्केट वैल्यू को ऐड किया जाए तो उन 50 कंपनियों की मार्केट वैल्यू ही आज 1.5 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास हो जाएगी। क्या हैरानी होनी चाहिए आपको, यू शुड बी सरप्राइज्ड। पूरी जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर्स, उसमें से सिर्फ टॉप 50 कंपनीज की वैल्यू 1.5 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स। You would be further surprised when I tell you that if you look at the market value of all the listed companies in India, इंडिया में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, सेंसेक्स में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 3000 4000, सारी कंपनीज की वैल्यू को ऐड कर लिया जाए तो वो वैल्यू भी आज 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, 3 या 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होगी। तो आपने नोटिस किया मैं क्या कर रहा हूं, एक जगह मैं बात कर रहा हूं इंडिया की जीडीपी का साइज क्या है, और दूसरी जगह मैं बात कर रहा हूं मार्केट वैल्यू का साइज क्या है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसा माना जाता है कि स्टॉक मार्केट की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से फोकस बढ़ा लीजिए, स्टॉक मार्केट की वैल्यू तभी बढ़ती है जब जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है। ऐसा क्यों, समझने की कोशिश करिए। जब जीडीपी बढ़ती है इसका मतलब क्या, प्रोडक्शन बढ़ती है। अगर जीडीपी बढ़ती है मतलब सबकी प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा, टॉप 50 कंपनी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी एज कंपेयर टू अदर कंपनीज इन द इकोनॉमी। जब इंडिया की प्रोडक्शन बढ़ती है तो कंपनीज ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं तो उनकी सेल भी क्या होगी, ज्यादा। अगर उनकी सेल ज्यादा होगी तो उनका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा। अगर उनका प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो उनके शेयर के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, और अगर शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, एक बार चैट बॉक्स पे मेरे लिए लिख दीजिए, जब जीडीपी बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, ज्यादा सेल होती है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, उनके शेयर प्राइस बढ़ते हैं, तो मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि लंबे समय में इन दोनों की जो रेशियो है मार्केट वैल्यू जीडीपी की, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसको 1 होना चाहिए। मतलब अगर जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर्स है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मार्केट वैल्यू को भी 3 ट्रिलियन डॉलर ही होना चाहिए। इस इंडिकेटर को, मार्केट वैल्यू या जीडीपी इंडिकेटर को, कई लोग वॉरेन बफेट इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर, वॉरेन बफेट सर ने किसी इंटरव्यू में कह दिया था, अगर मुझे एक इंडिकेटर देख के पता करना हो कि आज मार्केट एक्सपेंसिव है या चीप, तो मैं मार्केट वैल्यू बाय जीडीपी इंडिकेटर देख के पता करूंगा। क्या देख के पता करते हैं, एक बार समझते हैं। मैंने आपको बताया अगर जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर है तो मार्केट वैल्यू को भी 3 होना चाहिए, लेकिन जीडीपी जो होती है वो काफी स्टेडी होती है। स्टेडी मतलब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। जैसे आपको बताया कोविड जैसी चीज भी हो गई तो भी 2.9 से 2.7 ही आई। लेकिन स्टॉक मार्केट जो होती है वो बहुत वोलेटाइल होती है, मार्केट कभी 50% ऊपर कभी 50% नीचे। उसके वजह से क्या होता है कि कभी कभी जीडीपी 3 की 3 है, बट मार्केट फ्यूचर को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाती है, मार्केट को लगता है फ्यूचर में बहुत ग्रोथ होने वाली है, और फ्यूचर की ग्रोथ को वो पहले से ही डिस्काउंट कर लेता है, और लोग शेयर के प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, महंगे प्राइस पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और मार्केट वैल्यू हो जाती है, से अज्यूम कर लीजिए 4.5 ट्रिलियन डॉलर। तो ये रेशियो कितना हो गया, 1.5। जब ये रेशियो 1.5 हो जाए तो हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट जो है वो जीडीपी से कहां निकल गई है, आगे। और क्योंकि ये आगे निकल गई है तो हम कई बार बोलते हैं मार्केट क्या हो गई है, एक्सपेंसिव। ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, 1.5 मार्केट कैप बाय जीडीपी हो जाए तो मार्केट महंगी हो गई है।
उसी तरीके से कभी जीडीपी 3 की 3, लेकिन मार्केट में कोविड जैसी न्यूज आ जाती है, न्यूक्लियर वॉर की न्यूज आ जाती है, किसी ऐसी कोई बहुत बड़ी खराब न्यूज आ जाती है, तो लोग ज्यादा ही घबरा जाते हैं और फ्यूचर को डार्क समझ के पहले ही वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट वैल्यू गिर जाती है और मान लेते हैं मार्केट वैल्यू 1.5 ट्रिलियन आ गई, तो ये रेशो क्या हो जाएगा 0.5। जब ये 0.5 पे आ जाए तो हम जैसे लोग बोलते हैं मार्केट जीडीपी से पीछे रह गई है और मार्केट रिलेटिवली क्या हो गई है, चीप। तो मैंने आपको क्या बताया, 0.5 पे हो तो मार्केट चीप है, शायद बाय कर लेना चाहिए। 1.5 पे है तो मार्केट शायद एक्सपेंसिव है, सेल कर देना चाहिए। अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइम पे क्या आएगा कि भाई वरुण ये बता, आज मार्केट कैप बाय जीडीपी कितनी चल रही है? क्योंकि अगर आज 0.5 चल रही है तो लेक्चर वेक्चर बाद में कर लेंगे, पहले जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आज मार्केट कैप बाय जीडीपी करीब करीब 1 या 1.1 के आसपास चल रही होगी। मतलब ना 1.5 जितनी महंगी, ना 0.5 जितनी सस्ती। तो आप में से कई लोग क्या बोलेंगे, यार ये क्या बात हुई, ना मार्केट क्लियरली महंगी है ना मार्केट क्लियरली सस्ती है, तो आप करना क्या चाहिए? तो जब भी आपको लगे कि मार्केट ना क्लियरली महंगी है ना क्लियरली सस्ती है, ये कंफ्यूज सिग्नल्स दे रही है, तो हमेशा वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम का ये कोट याद रखिएगा। क्या आपको डाउट आता है, यार मार्केट ना क्लियरली महंगी है ना सस्ती है, तो बेंजामिन ग्राहम क्या बोलते थे, मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन। मार्केट्स बहुत पैसा कमा के घर निकल जाओ, और इतनी डम भी नहीं होती कि अचानक से 0.5 पे आ जाए और सबको बोले जिसको खरीदना है खरीद लो, अमीर बनना है तो अमीर बन जाओ। तो मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन। ना वो आसानी से कभी 1.5 जाएगी, ना आसानी से कभी वो 0.5 जाएगी, लेकिन वो अगला सेंटेंस ऐड करते हैं और बोलते हैं, दो मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन, इट समटाइम्स बिहेव्स लाइक अ ड्रंकन मैन। कभी कभी वो मदोशी में बहुत महंगी या बहुत सस्ती हो जाती है, तब हम जैसे लोग इसका फायदा उठाते हैं। लास्ट इंडिया की मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.5 पे कब आई थी, किसी को आइडिया है? आप में से कोई बताना चाहेगा? आई थी 24 मार्च 2020 में। अब आप में से कई लोग बोलेंगे अब बताने का क्या फायदा, उस टाइम बताना चाहिए था। तो हमने एक्चुअली 24 मार्च 2000 को एक वीडियो पब्लिक की थी और यह बताया था कि हमें क्यों लगता है मार्केट हॉरिबली चीप है। लेकिन ये तो पहले की बात है, ये वीडियो के बारे में मैं बाद में समझाऊंगा इससे क्या सीखना चाहिए। बट अभी आप क्या बोलेंगे, वरुण ये सब छोड़, अभी ये बता, आज 1.1 चल रही है, आज का बता अब क्या करना चाहिए? तो आपके मन में दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले तो ये मार्केट कैप बाय जीडीपी मैं चेक कैसे करूं? मैं कहां से चेक करूंगा बार बार मार्केट कैप बाय जीडीपी? हाउ डू आई कैलकुलेट मार्केट कैप बाय जीडीपी? तो कहीं क्वेश्चन नोट कर लीजिए, Q&A सेशन में आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मार्केट कैप बाय जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, आज 0.5 होती तो खरीदना चाहिए था, 1.5 होती तो शायद बेचना चाहिए था शायद, लेकिन 1.1 पे मैं क्या करूं, व्हाट टू डू टुडे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैं दो क्वेश्चन आपको दे चुका हूं, नोट कर लीजिए, और Q&A सेशन में मैं एक एक करके इसको आंसर करूंगा, देखते कैसे हैं। और आज 1.1 पे मेरे पास अगर 100 रुपया होता, लाख रुपया होता, मैं उसको कैसे इन्वेस्ट करूं। परफेक्ट। अभी मैंने आपको यह बताया कि सेंसेक्स एंड निफ्टी इज नॉट ओनली द बैरोमीटर फॉर द स्टॉक मार्केट, इट इज एक्चुअली अ बैरोमीटर ऑफ द जीडीपी ऑफ, इट इज अ बैरोमीटर फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये हमारी इकोनॉमी का बैरोमीटर है। क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी का बैरोमीटर है, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो ये सुन के आता है वो ये है कि आपको क्या लगता है, वेयर विल द इकोनॉमी बी 20 ईयर्स और 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ? हमारी इकोनॉमी 20 साल बाद, 30 साल बाद कहां होगी? तो आपने बोला 20 साल 30 साल किसने देखे हैं? मुझे ये अच्छे से पता है कि आप में से किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है 20-30 ईयर्स में। आपका इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा यही है कि यूक्रेन रशिया वॉर एक अगले साल तक खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आपका क्वेश्चन ये है कि अगले साल तक यस बैंक बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। 20-30 ईयर्स तो आपने कभी सोचा ही नहीं। बट हम 20-30 ईयर्स की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वॉरेन बफेट सर बोलते हैं, द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट्स इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में स्किल और नॉलेज जो चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, वो नियरली जीरो है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस बेसिकली
इसलिए मैं बेसिकली कर रहा हूं एकदम, मैं ये 20-30 ईयर्स की बात कर रहा हूं। और मैं जब पूछ रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी 20 साल बाद 30 साल बाद कहां होगी, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब मैं अमेरिका, जर्मनी, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबको इंक्लूड कर रहा हूं। और आपका काम आसान करने के लिए मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। आपको चैट बॉक्स में बताना है कि आपके हिसाब से हम इकोनॉमी इन 3 ऑप्शंस के में से कहां पर होगी। या तो आप बोल सकते हैं यहां से पक्का खराब होगी। तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? आपने बोला लगता है न्यूक्लियर वॉर होने वाली है। रशिया पुतिन के बारे में पढ़ लिया, नॉर्थ कोरिया वाले के बारे में पढ़ लिया, तो लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। किसने बोला नहीं नहीं, मैंने तो क्लाइमेट चेंज पढ़ा है और 1-2 डिग्री टेम्परेचर ऊपर और पूरी दुनिया पानी के नीचे डिसअपियर हो जाएगी। तो ये आप बोल सकते हैं यहां से तो पक्का खराबी होगी। दूसरा आंसर है कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी बट हम सॉल्यूशन ढूंढते जाएंगे और यहां से हमारा लाइफ बेटर होते ही जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई। अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई और सच में बहुत बड़ी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। क्लाइमेट चेंज बहुत फास्ट हो गया जो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे तो पता नहीं क्या होगा। और अगर एलियंस निकले और एलियंस हमसे पावरफुल निकले तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरा ऑप्शन है कान से। तो जैसे मैं अधिकतर सेशंस में देखता हूं और अभी देख रहा हूं कि या तो लोग बोलते हैं डेफिनेटली बेटर, या कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो बोलते हैं कांट से। तो मैं हमेशा कांट से पे हाथ खड़ा करता हूं कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, इट इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड। तो जितने भी लोगों ने मेरे साथ कांट से पे हाथ खड़ा किया है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोगों ने मेरे साथ कांट से पे हाथ खड़ा किया है, हम हमेशा बोलते हैं ये हैं वो लोग जिन्होंने अपना एमबीए कर रखा है, या पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों का प्रॉब्लम क्या है? बहुत किताबें पढ़ ली हैं। बहुत किताबें पढ़ लो तो समझ नहीं आता होने क्या वाला है, तो ये सारे एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए हैं। अब जिन्होंने डेफिनेटली बेटर बोला, मैं तो एनालिसिस पैरालिसिस में हूं, मैं ये मानता हूं अधिकतर एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। बट जिन्होंने डेफिनेटली बेटर बोला वो भी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने बचपन से सुना है जो भी होता है अच्छा ही होता है, तो उन्होंने इसलिए उन्होंने भी बोल दिया अच्छा ही होगा। तो किसी ने बोला फिर होने क्या वाला है? तो somebody decided to ask this question to वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट सर ने जो जवाब दिया, that became the foundation of investing in stock markets. वॉरेन बफेट सर से किसी ने उनको पूछा what do you think where will the economy be 20 years or 30 years from now? And he said no matter what happens, चाहे कुछ भी हो जाए, no matter what happens, the next generation will always lead a better life than the previous generation. अगली जनरेशन की लाइफ बेटर ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए। किसी ने बोला इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाए, तो उन्होंने बोला इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, हिरोशिमा नागासाकी हो गया, लुक एट वेयर द वर्ल्ड इज टुडे। किसी ने बोला बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो उन्होंने बोला 1929 ग्रेट डिप्रेशन देख लिया दुनिया ने, 2008 ग्रेट रिसेशन देख लिया दुनिया ने, लुक एट वेयर द वर्ल्ड इज टुडे। ही कीप्स ऑन सेइंग नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। लेकिन जब वो बेटर बोल रहे हैं तो बेटर का मतलब वो स्पिरिचुअली बेटर नहीं बोल रहे, स्पिरिचुअली बेटर की बात नहीं कर रहे, रिलीजियसली बेटर की डेफिनेशन नहीं बोल रहे, फिलोसफिकल डेफिनेशन ऑफ बेटर नहीं बोल रहे। वो जब बेटर बोलते हैं तो वो बोलते हैं मटेरियलिस्टिकली बेटर। मटेरियलिस्टिकली बेटर मतलब इस मोह माया की दुनिया के हिसाब से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, स्पिरिचुअली नहीं, फिलोसफिकली नहीं, मटेरियलिस्टिकली। मोह माया की दुनिया में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपकी जिंदगी अच्छी कब होती है? मुझे कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है इस मोह माया की दुनिया में आपकी जिंदगी बेहतर कब होती है? तो वॉरेन बफेट सर ने डिफाइन किया, उन्होंने बोला इफ योर एबिलिटी, अगर आपकी एबिलिटी टू कंज्यूम द थिंग्स दैट यू वांट टू कंज्यूम, जो भी चीजें आप खरीदना चाहते हैं, जो भी चीजें आप खरीदना चाहते हैं, घर गाड़ी जो भी खरीदना चाहते हैं, अगर खरीदने की आपकी एबिलिटी बढ़ते जा रही है तो मोह माया की दुनिया के हिसाब से आपकी जिंदगी क्या होते जा रही है? बेटर होते जा रही है। अजीत कुमार सर का मैसेज है, सर ने बोला शायद ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड नहीं है सर, दिस इज अ लाइव सेशन, तो मैं लाइव हूं, मैं आपका मैसेज पढ़ पा रहा हूं, राजेंद्र सर का मैसेज भी पढ़ पा रहा हूं, अजीत कुमार सर से पहले किरण सर या मैम का भी मैसेज पढ़ पा रहा हूं, तो मैं मैसेजेस पढ़ पा रहा हूं। इट्स अ लाइव सेशन बट यस दिस इज अ अवेयरनेस प्रोग्राम, हो सकता है आपने पहले भी अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा किया हो। ऑलराइट, तो मैंने बोला आपकी जिंदगी बेहतर कब होती है? when the ability to consume the things that you want to consume is increasing, your life is getting better. अब क्वेश्चन क्या है, मैं और आप क्या कंज्यूम करना चाहते हैं? ये जानने के लिए कि मैं और आप, अगर हमारे पास पैसा आए तो हम क्या खरीदेंगे, उसके लिए मैं आप सबको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल रहा हूं।
और वो है तो मेरे ख्याल से मुरुगेसन सर का एक मैसेज है, अनेबल टू रीड ड्यू टू योर पिक्चर। आई थिंक पिक्चर मेरी नहीं आ रही क्योंकि मैंने अलग जगह लिखा हुआ है, बट मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं टीम। ऑलराइट, तो हमने बोला कि जानने के लिए कि आप सब लोग क्या कंज्यूम करेंगे, मैं आप सबको एक बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल रहा हूं। अज्यूम करिए 2 घंटे बाद जब ये सेशन खत्म हुआ, आपको हमारी कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस 2 आवर्स ऑफ योर लाइफ, ये लीजिए अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपए आएंगे वाएंगे नहीं, बट अज्यूम कर लीजिए आ गए। अगर आप सबके पास 2 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गए, और दिल्ली वालों को तो बताना पड़ता है अकाउंट में है तो व्हाइट के ही होंगे, ब्लैक ब्लैक के नहीं है, कैश वैश के नहीं है, तो मुझे बताइए अगर 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए तो व्हाट विल यू डू विद दिस, आप पैसे का करेंगे क्या? और बहुत सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि आप जो भी आंसर देने वाले हैं कि मैं ये खरीदूंगा ये खरीदूंगा ये खरीदूंगा, उससे ही हम डिसाइड करेंगे कि आज हमको स्टॉक मार्केट में कहां इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए। तो बहुत सोच के बताइए, समझिए अगर अचानक से बेसिकली हमारे पास 2 करोड़ रुपए आ गए आप सबके पास, तो आप सब इस पैसे का क्या करेंगे? तो अधिकतर सेशंस में जब मैं करता हूं तो लोग बोलते हैं अगर 2 करोड़ रुपए आ गए तो आई वुड लाइक टू स्पेंड इट ऑन माई सेल्फ, पर्सनल कंजम्पशन कर दूंगा। तो मैंने बोला सर किस पे? तो कई लोग बोलते हैं आई वुड लाइक टू बाय अ बिगर कार फॉर माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू बाय अ बिगर हाउस फॉर माई सेल्फ, कई लोग बोलते हैं आई वुड लाइक टू ट्रैवल मोर ब्रांडेड क्लोथ XYZ। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं खर्चा वर्चा कुछ नहीं करेंगे, हम तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो बोलते हैं ना खर्चा करेंगे ना इन्वेस्ट करेंगे, हम पैसे को डोनेट कर देंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये तीनों लोग फाइनली इकोनॉमिक्स में एक ही चीज खरीदने वाले हैं। तो लोगों ने बोला कैसे? एग्जाम्पल सुनिए। समझिए अगर आपके पास पैसा आया तो आपने एक बड़ी कार खरीदी अपने लिए, क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है बड़ी कार चलाना। तो आपने क्या किया? पर्सनल कंजम्पशन किया। तो आपने एक बड़ी कार ली और अच्छा लगता है बड़ी कार चलाना, लेकिन जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी कार ही खरीदने वाला है, कुछ और नहीं खरीदेगा सर। कार खरीद के इसको ऊबर पे डाल देगा। तो ये ऊबर पे डल गई तो क्या बन गई? महीने के महीने अब क्या आता है? रेंट। तो ये क्या बन गया? इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से कई लोग एक बड़ी सी स्कूल बस खरीदेंगे और स्कूल बस खरीद के स्कूल को क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? डोनेशन करना हो तो भी ऑटोमोबाइल ही खरीदनी पड़ती है क्योंकि स्कूल उसको यूज करेगा। इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी ऑटोमोबाइल खरीदनी पड़ती है और रेंट पे डालना पड़ता है। खुद चलानी हो तो भी ऑटोमोबाइल खरीदनी पड़ती है। उसी तरीके से कई लोग एक बड़ा घर खरीदेंगे अपने लिए क्योंकि अच्छा लगता है बड़े घर में रहना, अपने ऊपर हो गया। कई लोग एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और इसको कहां डाल देंगे? एयरबीएनबी पे डाल देंगे। तो ये क्या बन गया? यही घर जो किसी और के लिए पर्सनल कंजम्पशन था, आपके लिए क्या बन गया? इन्वेस्टमेंट। और कई लोग एक बड़ी सी स्कूल की बिल्डिंग बनाएंगे और स्कूल को क्या कर देंगे? डोनेट कर देंगे। उसी तरीके से कई लोग ट्रैवल करते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, कई लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, कई लोग ट्रैवल करते हैं चैरिटी के लिए, कई लोग ट्रैवल करते हैं लेजर के लिए। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम सबके पास पैसा आएगा तो हम सब पैसे का क्या करेंगे? We will like to buy more cars, more houses, more travel, more vacations, more branded clothes. Are we as a generation consuming more cars, more houses, more travel than the previous generation? The answer is absolutely yes. इसका मतलब हमारी जिंदगी पिछली जनरेशन से बहुत अच्छी है। बट आप में से कई लोग बोलेंगे इसका क्या फायदा, ये तो हमको भी पता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? Will the next generation consume more? And the answer is absolutely yes. But what will they consume? मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। आज तो हम बड़ी गाड़ी बड़ा घर ये खरीदना चाहते हैं। What will the next generation consume? More cars or more choppers? तो हमने बोला हमको क्या पता। 50 साल पहले 50 years ago who knew that all of you would want to consume a mobile phone today? मोबाइल फोन नाम का शब्द भी नहीं था, वर्ड भी नहीं था। वैसे ही 50 इयर्स डाउन द लाइन लोग क्या कंज्यूम करना चाहते होंगे मेरे को आइडिया नहीं है, बट जो भी वो कंज्यूम करना चाहते होंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं अब हम। जो भी वो कंज्यूम करना चाहते होंगे उनकी एबिलिटी टू कंज्यूम आज की जनरेशन से क्या होगी? ज्यादा। अगर वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे तो उस टाइम की जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्शन आज की टॉप 50 कंपनीज से क्या होगी? ज्यादा। उन टॉप 50 कंपनीज का प्रॉफिट आज की टॉप 50 कंपनीज से क्या होगा? ज्यादा।
उन टॉप 50 कंपनीज की रेवेन्यू आज के टॉप 50 कंपनी से ज्यादा, उन टॉप 50 कंपनी के शेयर प्राइजेस आज की टॉप 50 कंपनी से ज्यादा। मतलब सेंसेक्स और निफ्टी की जो बास्केट है उसकी वैल्यू आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद उसकी वैल्यू आज के सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब अगर आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया में कुछ नहीं आता तो घर जाइए और घर जाके इंडियन इकोनॉमी पे बेट कर दीजिए, इंडियन इकोनॉमी पे बेट कर दीजिए। आपने बोला कैसे? मैंने बोला इंडियन इकोनॉमी पे बेट करने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल प्रॉक्सी है कि आप इंडिया की दो बास्केट्स खरीद लीजिए, सेंसेक्स और निफ्टी जैसी कोई बास्केट खरीदिए और खरीद के छोड़ दीजिए। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे सेंसेक्स निफ्टी भी बढ़ता ही जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस खरीदो और छोड़ दो, इतना सिंपल। तो मैं अपने फादर को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, जैसे मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं कि कुछ नहीं आता तो सेंसेक्स निफ्टी खरीद के छोड़ दो। बट आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस इतनी आसानी से तो मानते नहीं है। मेरे पापा ने बोला ऐसे थोड़ी ना मान जाएंगे, जो तू बोल रहा है सही है, मुझे प्रूफ चाहिए कि तू सही बोल रहा है। मैंने बोला क्या प्रूफ दे दूं पापा? उन्होंने बोला मुझे हिस्टोरिकल डेटा दिखाओ कि सेंसेक्स निफ्टी इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बोला पापा हिस्टोरिकल डेटा, पास तो कभी देखना ही नहीं चाहिए। उन्होंने बोला क्यों नहीं देखना चाहिए? मैंने बोला आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी कंट्री का कोई भी म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, हर म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। पास देख के कुछ पता मत करना। लेकिन पढ़े लिखे लोगों का प्रॉब्लम क्या है? एनालिसिस तो करना ही है, एनालिसिस लिए कुछ नहीं मिल रहा तो पास डेटा ही देख लेते हैं। तो मेरे पापा ने बोला ये सब बातें मेरे को भी पता है, बट मेरे को पास डेटा चाहिए। तो मैंने उनको पास डेटा दिखा दिया। मैंने उनको बताया आज 2022 में सेंसेक्स की वैल्यू कितनी चल रही है। आज सेंसेक्स की वैल्यू आप में से कोई बताना चाहेगा? चैट बॉक्स पे बताना चाहेगा आज सेंसेक्स की वैल्यू कितनी चल रही है? 56,000, 57,000, 57,000 चल रही है। और स्टार्ट कब हुआ था? 1979 में इसकी बेस वैल्यू डिसाइड की गई थी। और ये बेस वैल्यू उमेश सर एकदम बहुत डिटेल में बताएंगे कि आपको म्यूचुअल फंड नहीं तो आज क्या खरीदना चाहिए, बहुत डिटेल में बताएंगे। तो अब मान लेते हैं 57,000 के आसपास, 58, 59,000। और 1979 में जब ये स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट कितने पे हुआ था? 100 पे स्टार्ट हुआ था। 100 पे स्टार्ट हुआ, आज 57,000 चल रहा है। इट हैज गॉन अप बाय हाउ मेनी टाइम्स? आप में से कोई चैट बॉक्स पे लिखना चाहेगा कितने गुना बढ़ गया है? इट हैज गॉन अप बाय 570 टाइम्स इन लास्ट 42-43 ईयर्स। मतलब आप में से किसी को लास्ट 42-43 ईयर्स में 570 टाइम्स पैसा कमाना था तो क्या करना था? 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जितना भी था 1979 में, उससे इन्वेस्ट करना था और आज तक होल्ड करना था। इसके लिए दिमाग कितना लगता? लिख दीजिए चैट बॉक्स पे, इसके लिए दिमाग कितना लगता ये 570 टाइम्स कमाने के लिए? जीरो। इसके लिए दिमाग जीरो लगता। इसके ऊपर टैक्स कितना लगता? 2018 तक के गेन पे टैक्स भी कितना था? जीरो। मतलब टैक्स भी नेग्लिजिबल है। 2018 के बाद जो गेन है उस पे आपको 10% टैक्स भरना है, वो भी गेन पे। इसके ऊपर डिविडेंड इनकम अलग से मिली, उस पे भी 2018 तक टैक्स कितना लगता? जीरो, कुछ नहीं था। 570 गुना हर हिंदुस्तानी का जन्म सिद्ध अधिकार था। मैं तो कई बार गवर्नमेंट को बोलता हूं, टेल एवरी इंडियन दैट 570 टाइम्स रिटर्न इन लास्ट 42-43 इयर्स वाज एवरी इंडियन सिटीजन्स बर्थ राइट। आपका जन्म सिद्ध अधिकार था। इस 42-43 इयर्स में बहुत कुछ हुआ। हर्षद मेहता स्कैम हो गया, केतन पारिक स्कैम हो गया, कारगिल वॉर हो गई, यूक्रेन रशिया वॉर हो गई, कोविड हो गया, मनमोहन सिंह बेस्ट है वर्स्ट है हो गया, मोदी बेस्ट है वर्स्ट है हो गया, सब हो गया। उसके बावजूद 570 टाइम्स। तो मैंने अपने पापा को जब ये बताया, उन्होंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैंने बोला क्यों पापा? उन्होंने बोला तू बोल रहा है 42-43 ईयर्स के लिए पैसा रख दो। इतने साल में तो अगर मैंने पैसा बैंक एफडी में भी रख दिया होता तो भी मेरा पैसा बहुत बढ़ गया होता। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 1979 में आपने 100 रुपीज अगर सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं किए होते तो आप पैसा कहां रख सकते थे? बैंक एफडी में रख सकते थे। अज्यूम करिए बैंक एफडी में, आप में से कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा क्या अज्यूम करूं लास्ट 42-43 इयर्स में बैंक ने क्या रेट दे दिया? तो अज्यूम करिए बैंक ने रेट दे दिया 12% पर एनम।
लेकिन इस पे टैक्स भरना पड़ा। तो टैक्स भरने के बाद आफ्टर टैक्स मान लेते हैं 9% पर एनम। क्या बैंक ने दिया पूरे 42 43 इयर्स? एक दो साल दिया हो सकता है। क्या 42 43 इयर्स 12% पर एनम दिया? नहीं, बट मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि आपको बैंक बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बोला सर पूरा ही पैसा मान लो, बैंक ने आपको 12% दिया, उस पर आपने टैक्स भर दिया, तो आपके हाथ में कितना आ गया इफेक्टिवली 9% पर एनम। अगर आपके हाथ में टैक्स के बाद 9% पर एनम आ गया, तो कोई आप में से बताना चाहेगा अगर किसी को 9% पर एनम रिटर्न मिलता है तो कितने सालों में पैसा डबल हो जाता है 9% के हिसाब से? उसके लिए एक रूल है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या है? 72 डिवाइडेड बाय रेट। 72 डिवाइडेड बाय रेट is the approximate number of years it takes your money to double at that rate। मैं एग्जांपल करके दे रहा हूं। 72 डिवाइडेड बाय बैंक रेट कितना ले रहे हैं 9, तो 72 डिवाइडेड बाय 9 किया तो कितना आ गया 8। मतलब अगर किसी को 9% पर एनम मिले तो लगभग 8 इयर्स में पैसा क्या हो जाता है आफ्टर टैक्स? डबल हो जाता है। तो मेरे साथ ये कैलकुलेशन करिए। 1979 में टाइम इज इक्वल टू 0 पे अगर मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते बैंक में, तो 8 साल बाद 8 इयर्स बाद, अभी 42 43 इयर्स हो गए, 8 इयर्स बाद कितना हो जाता? डबल 200। 16 इयर्स बाद फिर से डबल हो जाता 400। 24 इयर्स बाद 800। मैं 8 इयर्स बढ़ाते जा रहा हूं। 32 इयर्स बाद 1600 और आज 42 इयर्स बाद कितना हो जाता? 3200। मतलब 100 रुपीज इन द बैंक वुड हैव गॉन अप टू 3200। मुझे चैट बॉक्स पे लिख के दे सकते हैं बैंक में जो 100 रुपए बढ़ा था वो कितने गुना बढ़ा? सेंसेक्स निफ्टी बढ़ा 570 टाइम्स। सेंसेक्स बढ़ा 570 टाइम्स, और बैंक में पैसा रखा होता तो कितना पैसा बढ़ा होता? बैंक में बनता 32 टाइम्स। तो जेम्स सर का मैसेज है या मैम का मैसेज है कि प्लीज गो एडवांस। तो डोंट वरी, हम बहुत एडवांस जाने वाले हैं, बट जैसे मैंने बोला स्टार्ट हम बेसिक से ही करते हैं। आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज विद मी ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। अब हमने बोला ये 32 टाइम्स हो गया। अब जब मैंने बोला कि आपने फादर को बताया पापा बैंक से कहां कंपैरिजन है, तो मेरे पापा ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू बताते जा रहा है रिटर्न ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, बट व्हाट अबाउट रिस्क? भाई सेंसेक्स निफ्टी में रिटर्न ज्यादा है लेकिन रिस्क भी तो है। कोई जुआ खेल के आता है ज्यादा कमाता है, तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि जुए में ज्यादा रिटर्न है, ये भी तो बोलते हैं कि जुए में या गैम्बलिंग में रिस्क है। तो वैसे ही यहां पर भी रिस्क समझ लेते हैं। तो रिस्क दो टाइप के होते हैं। पहला रिस्क कौन सा होता है? जीरो होने का रिस्क। व्हाट इज रिस्क ऑफ बीइंग जीरो? मैं एग्जांपल देता हूं। समझिए मेरे जैसा कोई दोस्त या आपका फ्रेंड आपके घर पहुंचा और मैंने आपको बोला भाई पैसा कहां रखते हो आप अपना सरप्लस पैसा? आपने बोला हम तो अपना सारा सरप्लस पैसा कहां रखते हैं? बैंक में रखते हैं। तो श्रीनिवास सर बोल रहे हैं कि आजकल बैंक तो है वो तो 5 to 6% देता है। तो मैंने बोला फिर तो और भी खराब है, फिर तो आपको स्टॉक मार्केट में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मैंने आपको बताया 9% भी दे रहा होता तभी भी बैंक को आप कंपेयर नहीं कर सकते थे सेंसेक्स निफ्टी से। अच्छा, अब हमने बोला कि मेरे जैसा कोई घर पहुंचा, आपका दोस्त घर पहुंचा, मैंने आपको बोला आप पैसा कहां रखते हो सरप्लस? आपने बोला हम तो सारा सरप्लस पैसा बैंक में रख देते हैं, पापा ने यही बताया था कि बैंक से बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने तो कभी पैसा बैंक में नहीं रखा। मैंने तो क्या किया, बैंक से पैसा निकाला और मैं प्रॉपर्टी में खरीदते गया, फ्लैट खरीदते गया, प्लॉट खरीदते गया, और आज मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रॉपर्टी में 300 गुना 400 गुना बढ़ गई है। तो आपने बोला हम नहीं मानते, पापा ने तो यही बताया था बेस्ट जगह कौन सी होती है? बैंक की होती है। तो मैं आपके घर से गया, निकला। जैसे ही मैं आपके घर से निकला तो आपने अपने बैंकर को कॉल किया। आपने बैंकर को बोला यार वो वरुण बोल रहा था कि उसने पैसा कभी बैंक में नहीं रखा, उसने प्रॉपर्टी खरीदी और वो बोल रहा था 400 टाइम्स का रिटर्न मिल गया, सही बता रहा था क्या? तो बैंकर ने बोला सर 400 टाइम्स रिटर्न तो तब मिला व्हेन यू वुड हैव बॉट अ नॉर्मल प्रॉपर्टी। गलती से साउथ दिल्ली या साउथ मुंबई में खरीद ली होती तो 1000 टाइम्स हो गया होता। तो आपको बड़ा गुस्सा आया। आपने बोला पापा ने कहां फंसा दिया बैंक में। अब वरुण जैसे दोस्त से मिलने के बाद, उससे समझने के बाद समझ पड़ा है कि पैसा बैंक में नहीं, कहां डालना चाहिए था? प्रॉपर्टी में। और इस नई जोश, नई उमंग, नई अंडरस्टैंडिंग से आपने अपना सारा पैसा बैंक से निकाला और निकाल के अम्रपाली जैसे ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। किसी ने अम्रपाली में किया, किसी ने जेपी विस्टाउन में किया।
हर सिटी हर स्टेट में ऐसी कोई कहानी है जहां पे आपने प्रॉपर्टी में डाला क्योंकि आपको लगा प्रॉपर्टी बेस्ट है, उसके बाद डालते ही पैसा क्या हुआ, बिल्डर गायब, और आपको याद आया पापा सही कहते थे पैसा कहां रखो, बैंक में रखो। उसी तरीके से मेरे जैसा दोस्त अब आपके पास आके क्या बोल रहा है कि सेंसेक्स निफ्टी में पैसा डालो। आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, भाई सेंसेक्स निफ्टी में हम पैसा क्यों डाल रहे हैं, ताकि हमारा रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा हो जाए, कुछ ज्यादा मिले। लेकिन ज्यादा के चक्कर में जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो क्या मुझे आप में से कोई चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है कि मैं आपको बोल रहा हूं सेंसेक्स निफ्टी में पैसा डाल दो, लेकिन हम डाल रहे हैं सेंसेक्स निफ्टी में ताकि हम ज्यादा पैसा कमाएं, लेकिन ज्यादा के बजाय जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, कैन सेंसेक्स निफ्टी एवर बिकम जीरो, क्या सेंसेक्स निफ्टी कभी जीरो आ सकता है? चैट बॉक्स पे मेरे को लिख के बताइए। हम ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कमाने के बीच में जीरो हो गए हो सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली नहीं। वॉर भी चल रही होगी तो बंदूक तो कोई बना ही रहा होगा, वॉर भी चल रही होगी, खाना तो कोई दे ही रहा होगा, पानी तो कोई दे ही रहा होगा, उसकी कोई ना कोई कंपनी तो होगी ही होगी। तो सेंसेक्स निफ्टी कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा है, और किसी भी चीज का रिटर्न अगर बैंक के रेट से ज्यादा है तो उसमें कोई ना कोई रिस्क होना ही चाहिए। कौन सा रिस्क होगा? जीरो होने का रिस्क तो नहीं है, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी में उतार चढ़ाव का रिस्क है, यानी वोलेटिलिटी का रिस्क है। आपको क्या लगता है ये जो सेंसेक्स 1979 से 100 से आज 56-57,000 पे आ गया है, क्या ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया है? चैट बॉक्स पे लिख के मुझे बताइए, क्या ये स्ट्रेट लाइन में गया है? नहीं, ये तो बहुत ऊपर नीचे करके गया है। और आप में से जो लोग इसको रोज रोज देखते थे वो तो ऐसा घबरा जाते हैं इसको उतार चढ़ाव देख के कि आप बोलते हैं कहा नहीं जा सकता ये कब गिर जाए, कब बढ़ जाए, कब बढ़ जाए, इसलिए छोड़ो, स्टॉक मार्केट रिस्की होता है। लेकिन आपको क्या समझना चाहिए, स्टॉक मार्केट रिस्की यानी वोलेटाइल शॉर्ट टर्म में होता है। मतलब स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे होगी पता नहीं, यूक्रेन रशिया की वॉर कल होगी परसों होगी, कोविड का नया वेरिएंट कल आएगा परसों आएगा, कोई और प्रॉब्लम कब आएगी ये पता नहीं है, तो ये बहुत इरेटिक होगी। लेकिन जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, चाहे ये जर्नी कितनी भी इरेटिक हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस, द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। ये 100 से जर्नी 57,000 की स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ऊपर जाके नीचे जाके जाएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आपको क्या समझना चाहिए, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रिस्क, वोलेटिलिटी का रिस्क होता है, और इसको मैनेज करने के लिए कई बार थंब रूल दिया जाता है कि कोई भी पैसा जो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में चाहिए, कोई भी पैसा जो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में चाहिए, वो पैसा कभी स्टॉक मार्केट में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है। लेकिन वॉरेन बफेट सर वोलेटिलिटी के बारे में क्या बोलते हैं? वॉरेन बफेट सर बोलते हैं मेक वोलेटिलिटी योर फ्रेंड, वोलेटिलिटी को अपना दोस्त बना लो, इसका फायदा उठाओ। तो लोगों ने बोला मतलब, उन्होंने बोला देखो ऐसा है, मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, कभी कभी ज्यादा ही ऊपर निकल जाती है, और मार्केट कैप जीडीपी से कहां निकल जाता है, आगे। तो मतलब मार्केट क्या हो गई है, एक्सपेंसिव, तो बोलते हैं यहां क्या कर दो, सेल। फिर उसके बाद 9/11 जैसा अटैक हो जाता है तो मार्केट ज्यादा ही घबरा जाती है, मार्केट कैप बाय जीडीपी क्या हो जाती है, नीचे, तो यहां बाय कर लो। फिर एक्सपेंसिव हो जाए तो सेल कर दो, फिर नीचे आ जाए तो बाय कर लो। तो वो तो बोलते हैं इस उतार चढ़ाव का फायदा उठाओ। लेकिन ये फायदा तो वो उठाएगा ना जिसको पता है दैट व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये तो हमने भी सीखा ही नहीं। मैंने आपको बताया था आज लास्ट के 30 मिनट्स में हम बात करेंगे रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। तो हमने बोला अभी तो हमको नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं, और वो कहानी इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से मिलने के बाद मुझे समझ पड़ता है कि मेक वोलेटिलिटी योर फ्रेंड तो दूर की बात है, यू मेक वोलेटिलिटी योर एनिमी। आप वोलेटिलिटी को अपना दुश्मन बना लेते हैं। 1 मिनट की एक कहानी समझिए और आपको पता चल जाएगा आप मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। तो समझिए ये है 1992, मार्केट की वैल्यू हर्षद मेहता स्कैम का पीक 3000 4000 चली गई थी, लिख लेते हैं इधर 3000 मार्केट का लेवल कब था, 1992। उससे पहले 1987 में ये क्या है, 500 के आसपास है, तो लिख लेते हैं 1987 मार्केट की वैल्यू 500 और 1992 मार्केट की वैल्यू 3000।
मुझे बता सकते हैं 1987 से 1992 कितने गुना मार्केट बढ़ गई? 5 साल, 87 से 92, 500 से 3000 कितने गुना बढ़ गई? 6 टाइम्स, 6 गुना मार्केट बढ़ गई। 6 गुना जैसे ही मार्केट बढ़ी तो मेरे जैसा कोई दोस्त आपके घर पहुंचा, मैंने आपको बोला कहां रखते हो पैसा? तो आपने बोला हम तो बैंक में रखते हैं। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? मैंने अपना पैसा सेंसेक्स निफ्टी में डाला 1987 में, और 1992 में जो 1 लाख रुपया डाला वो 6 लाख रुपया हो गया। जैसे ही मैंने बोला 6 लाख, आपने बोला हम नहीं मानते। मैं घर से गया, आपने अपने बैंकर को कॉल किया, आपने बैंकर को बोला कि वरुण बोल रहा था कि उसने 5 साल में स्टॉक मार्केट में 6 गुना कमा लिया, सही बोल रहा था क्या? क्योंकि बैंक में तो डबल भी नहीं हुआ 6 साल में। तो आपके बैंकर ने बोला सर 6 टाइम्स तो तब हुआ जब आपने सेंसेक्स निफ्टी खरीदा होता। बस अगर गलती से आपने टीसीएस, विप्रो, आइशर मोटर जैसा कोई बेस्ट स्टॉक खरीद लिया होता तो 6 इयर्स में या 5 इयर्स में 30 टाइम्स हो गया होता। जैसे ही आपने सुना 30 टाइम्स, आपने बोला अब समझ पड़ा है अपने वरुण जैसे दोस्त से बात करके कि पैसा कहां डालना चाहिए था। ये पापा ने कहां फंसा दिया? बैंक में डाल दो, बैंक में डाल दो। और 1992 में, बहुत ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, 1992 में इस नई जोश, नई उमंग, नई अंडरस्टैंडिंग से आपने डिसाइड किया कि आपको भी स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए पैसा। आपने सारा पैसा बैंक से निकाला और स्टॉक मार्केट में डाला। 1 लाख डाला, 10 लाख डाला, 10 करोड़ डाला, कोई एक अमाउंट डाला। और वरुण ने आपको क्या बताया था? रोज रोज देखना नहीं है कि मार्केट कहां जाती है, तो आपने देखा नहीं। वरुण ने आपको क्या बताया था? चिंता नहीं करनी, शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होता है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, लॉन्ग रन में तो मार्केट बढ़ती है। आपने ऐसा ही किया। 1992 के बाद मैं और आप किसी पार्टी में मिले 10 साल बाद 2002 में, और आपने मेरे को बोला वरुण तेरे को पता है, तेरे से बात करने के बाद मैंने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया है सर, ऐसे ही करना चाहिए। आपने बोला अब मैं बैंक में नहीं रखता, लॉन्ग रन का जो पैसा लॉन्ग टर्म में चाहिए होता है वो स्टॉक मार्केट में रखता हूं। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया है। फिर आपने बोला मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मैं देखता भी नहीं हूं। मैंने बोला बहुत बढ़िया है सर, ऐसा ही करना चाहिए। फिर आपने बोला यार वैसे तो 10 साल हो गए हैं ना, मेरे को पैसा चाहिए ना मेरे को निकालना है, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसा मैंने 10 साल पहले डाला था, 1 लाख रुपया जो मैंने 1992 में इन्वेस्ट किया था, वो 2002 में 10 साल बाद कितना हो गया? तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। ये देख लीजिए, 1992 का डॉट और 2002 का डॉट। 1992 में मार्केट का लेवल 2002 से भी ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया सर जो आपने 1 लाख रुपए डाला ना, वो 80,000 हो गया है। आपने बोला 10 साल में कम हो गया है। मैंने बोला हाँ। तो आपको बड़ा गुस्सा आया। आपने बोला तूने तो बोला था 6 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। मैंने बोला इस बार नहीं हुआ। आप बड़े गुस्से में पार्टी से निकले, अपने बैंकर के पास गए। आपने बैंकर को बोला वरुण के बोलने पे मैंने 1 लाख रुपया बैंक से निकाला था, और वो 1 लाख रुपया 10 साल बाद 80,000 हो गया है। तो बैंकर ने आपको गुस्सा दिलाने के लिए बताया सर इससे अच्छा तो 1 लाख रुपया बैंक में रख दिया होता 1992 में। 2002 में बैंक में ही ये पैसा 2.5 लाख बन गया होता, 2.5 लाख बन गया होता। आपको बड़ा गुस्सा आया। आपने बोला पापा सही कहते थे, ये वरुण जैसे दोस्त आते हैं और बोल देते हैं मार्केट वार्केट में करो। फिर आपने बोला अब बहुत हो गया, समझ पड़ गया पापा क्या कहते थे। अब नई जोश, नई उमंग, नई अंडरस्टैंडिंग और डेटा को देख के आपने डिसाइड किया अब मैं कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कसम खा रहा हूं। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कितनी बार कसमें खाई हैं कि हम कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर 2002 में आपने सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाला और बैंक में पार किया। जैसे ही आपने पार किया 2002 में 3000 के लेवल से 2007 में मार्केट 21,000 पे आ गई। 3000 से 21,000, इट वेंट अप बाय 7 टाइम्स। 7 गुना पैसा बढ़ गया। जैसे ही 7 गुना बढ़ा, आपने बोला अब समझ पड़ा है वरुण क्या बोल रहा था। मैं ना नीचे मार्केट जब गिरी तो घबरा गया था। मुझे घबराना नहीं चाहिए था, बने रहना चाहिए था। बना रहता तो बहुत पैसा बन जाता। फिर आपने बोला लेकिन अब तो समझ पड़ गया है कि लंबे समय में मार्केट अच्छी होती है। फिर आपने 2007 में नई जोश, नई उमंग, नई अंडरस्टैंडिंग में हिस्टोरिकल डेटा देख के सारा पैसा बैंक से फिर से निकाला और स्टॉक मार्केट में डाला। जैसे ही आपने डाला, डालते ही मार्केट नीचे आई और 2008 का लीमन क्राइसिस में मार्केट 8,000 के लेवल पे आ गई। जैसे ही 8,000 पे आई, आपने बोला तो होता ही जुआ है यार, मार्केट है ही ऐसी। और करते 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 आज मार्केट 57,000 पे आ गई है। अच्छा,
आजकल मेरे को बहुत लोग पूछते हैं इस बार कब गिरेगी मार्केट, तो मैं आप सबको बड़े आराम से बता सकता हूं कब गिरेगी। तो लोग बोलते हैं बताओ कब गिरेगी, तो बहुत ध्यान से सुनिए। जिस दिन आपको और आपकी फैमिली को जितना पैसा मार्केट में डालना है, जिस दिन आपको और आपकी फैमिली को जितना पैसा मार्केट में डालना है, आपने जैसे ही डाला, याद रखिए बस सर, आपने जैसे ही डाला बस अगले दिन से ही गिर पड़ेगी। क्योंकि आप लास्ट आदमी होते हैं इन्वेस्ट करने वाले। आप लास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आप बोलते हैं हिस्टोरिकल डेटा बताओ, ये बताओ, वो बताओ। जब तक सारा डेटा क्लियर नहीं कर देता कि इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तब तक आप इन्वेस्टमेंट करते नहीं। और जब आप करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और उस टाइम बाय करने के लिए क्या भरना पड़ता है? स्टॉक मार्केट की जो भी वैल्यू है उससे ज्यादा। आप हमेशा प्रीमियम पे बाय करते हैं और डिस्काउंट पे सेल करते हैं। वॉरेन बफेट सर बार बार क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब सब बोले बेस्ट है तो बेच दो, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम ज्यादा है, सब खुश हैं तो ज्यादा पे कर रहे हैं। और जब सब नेगेटिव हो जाए तो लोग डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट में, वहां पे क्या कर लो? बाय कर लो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? यू बिकम ग्रीडी व्हेन एवरीवन अराउंड यू इज मेकिंग मनी। जब आपको दिखता है सब पैसा कमा रहे हैं और सब पैसा कमा रहे हैं, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ग्रीडी हो जाते हैं और आप तब इन्वेस्ट करते हैं। और आप तब फेयरफुल होते हैं जब आपके आसपास सबका पैसा डूब रहा है। अब इतना सब सुनने के बाद आपके मन में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा? यार ये कहानी तो हमारी ही बता रहा था, ये तो हमको पता ही है, तो हम करते ही। बट प्रॉब्लम क्या है, हम वोलेटिलिटी से डील कैसे करें? क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होता तो बहुत है। तो वोलेटिलिटी से डील करने के दो ब्रॉड तरीके बता रहा हूं मैं आपको। एक तरीका जो आपको पसंद नहीं आएगा। पहला तरीका जो आपको पसंद नहीं आएगा वो कौन सा है? मैं हमेशा बोलता हूं सर ऐसा करो, अगर उतार चढ़ाव से बहुत डर लग रहा है तो 30-40 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो। बीच में 10 साल खराब भी आ गए तो क्या होगा, बाद में ठीक हो जाएगा। तो आपने बोला वरुण इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है 30-40 साल। तो मैंने बोला सर अगर इतना टाइम नहीं है तो वो कर दो जो टीवी पे रोज बताते हैं। तो आपने बोला क्या बताते हैं? मैंने बोला सर टीवी पे रोज बताते हैं अगर आपको उतार चढ़ाव से बचना है, वोलेटिलिटी से बचना है, तो क्या कर दो? एसआईपी कर दो, एसआईपी कर दो। ये तो आपने टीवी पे सुना भी होगा। एसआईपी मतलब कई लोगों ने सुना हुआ है, सब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। भाई हर महीने के महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मार्केट ऊपर नीचे करके ऊपर जा रही है, फाइनली तो कहां जाना है? ऊपर ही जाना है। तो अगर आप हर महीने 500 रुपए डाल रहे हैं, पीक पे भी 500 रुपए डाल रहे हैं, क्योंकि आपको तो नहीं पता था ये मार्केट का पीक है, फिर आप 500 रुपए डाल रहे हैं तो बॉटम पे भी आपने 500 रुपए डाल दिया। आपको नहीं पता बॉटम कब है, पीक कब है। आप बस डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। उसके वजह से कभी पीक पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, कभी बॉटम पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके वजह से आपका बाइंग प्राइस एक एवरेज प्राइस पे इकट्ठा हो जाता है, जिसको कई बार इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बोल देते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और टीवी वाले बोलते हैं बस एसआईपी कर दो, लंबे समय में तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। टीवी वाले ये तो बता देते हैं कि एसआईपी कर दो, लेकिन एसआईपी कहां करो, किधर, वेयर शुड आई डू एसआईपी, वो नहीं बताते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लास्ट 5 इयर्स में बिना रुके बिना थके बड़ी डिसिप्लिन के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ किंगफिशर स्टॉक में एसआईपी की होती तो बताइए क्या होता? कैसे? किंगफिशर का स्टॉक नीचे गिरा तो आपने इस क्लास, ये आज की क्लास की हुई है, तो आपने बोला नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया तो आपने बोला तो क्या हुआ, और खरीद लो, क्योंकि लोग फ्लाई करना थोड़ी ना बंद कर देंगे, फ्लाई तो लोग करते ही रहेंगे। तो ठाकुर सर का मैसेज है कि मैं 70 की एज में मैं कैसे करूं। मैंने आपको बताया था आज के सेशन में हम फाइनेंशियल प्लान्स बनाएंगे। अगर आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 60, 70 के हैं, तो आप कैसे अपना पैसा मैनेज करेंगे ये मैं बता रहा हूं। तो मैं आपका नाम याद रखूंगा ठाकुर सर, और जब ये आएगा तो मैं शायद आपका नाम लूं, अगर मैं पूरा याद करने की कोशिश करूंगा। अब फिर से स्टॉक नीचे आया, आपने बोला तो क्या हुआ, नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। आपने बोला लोग फ्लाई करना थोड़ी ना बंद कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, और करते 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 ये जीरो हो गया। मतलब क्या समझ पड़ा? आपने जो पैसा डाला वो जीरो हो गया। द वर्ल्ड इज स्टिल लीडिंग अ बेटर लाइफ, पीपल आर स्टिल फ्लाइंग, बट आपका पैसा जीरो हो गया। तो किंगफिशर तो जीरो हो सकता है, क्या कभी सेंसेक्स निफ्टी जीरो हो सकता है? नहीं। तो क्यों ना मैं और आप आज से एक रूल बनाएं
कि हमें और आप सेंसेक्स निफ्टी में हर महीने क्या करेंगे, अब एसआईपी। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आप 500 करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और अगर मार्केट नीचे गिर गई तो भी करते जाएंगे। इनफैक्ट अगर गिरेगी तो सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मार्केट नीचे आएगी, गिरेगी, तो आप क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो आपने बोला गिरने पे सेलिब्रेट क्यों करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप 500 रुपीज हर महीने डाल रहे हैं, 500 इधर, 500 इधर, 5 इधर, 500 इधर, इधर इधर, अब आपने 500 रुपीज यहां भी डाल दिए। जनवरी 2008 में मार्केट की वैल्यू कितनी चल रही थी, सेंसेक्स की वैल्यू 21,000। आपको तो नहीं पता था कि ये मार्केट का ये पीक है, फिर आप डालते गए 500 इधर, 500 इधर, 500 इधर, आपने 500 नीचे भी डाल दिया। आपने जब 500 डाला तो ये जनवरी 2009 का लेवल है, मार्केट की वैल्यू 8,000 पे आ गई थी, तो 8,000 पे भी आपने डाल दिया, क्योंकि आपको तो नहीं पता था ये बॉटम है। फिर करते 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 आज मार्केट 57,000 पे है। आप में से कोई मुझे चैट बॉक्स पे लिख के ये बताएगा, आपसे मुझे कोई मुझे लिख के बताएगा कि आपकी सर जो भी है, जो संध्या मैम ने लिखा है, तो हम इसको मजाक में ऐसे बोलते हैं, आपकी कोई भी है जो मार्केट को नहीं पता होता, जिसने इन्वेस्ट किया उसकी एज क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल कैसा होना चाहिए पहले वो समझते हैं, फिर आपको अपने एज स्पेसिफिक कैसे बात करनी चाहिए ये तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा। तो मैंने जैसे बताया था पहले, जो प्रांजल सर बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, निफ्टी में लॉट साइज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा लेना कैसे है। लेकिन जैसे मैंने बोला था, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले थोड़े टाइम के लिए क्या करते हैं, जो मुझे बताना है वो बताने दीजिए, और लास्ट में आप मुझे क्वेश्चन आंसर पूछिए, जितना पूछना है पूछिए, मैं तो 1 घंटे क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। अब बताइए, जब मार्केट 57,000 पे है, तो आज पीछे देख के आपको क्या लगता है, ज्यादा 500 कौन से 500 में हमको फायदा हुआ, वो 500 में ज्यादा फायदा हुआ जो हमने 21,000 पे डाला था, और आज मार्केट 57,000 मतलब करीब करीब 3 गुना हो गया है, या उस 500 पे हुआ जो आपने बॉटम पे इन्वेस्ट किया था, जो आपने 8,000 पे डाला था, आज 57,000 मतलब 7 गुना हो गया है। कोई मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताएगा, आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमको क्या लगता है, ज्यादा फायदा कौन से 5,000 में हुआ, वो 500 रुपीज में हुआ जो बॉटम पे डाला था 2008 में, या वो 500 पे हुआ जो 2009 के बॉटम पे डाला था, या वो 500 पे हुआ जो आपने पीक पे डाला था। तो पीक और बॉटम यूज करके मेरे को बताइए कौन से 500 में ज्यादा फायदा हुआ, बॉटम वाले 500 में या पीक वाले 500 में, ये आपको सोचना है। जब मार्केट गिर रही होती है तो बड़ा डर लगता है, गिर रही है गिर रही है गिर रही है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पता लगता है कि जो नीचे हमने 500 पे इन्वेस्ट किया था उसमें फायदा हुआ ज्यादा। तो आज से मैं और आप क्या करेंगे, आज से मैं और आप हर महीने सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद अगर मार्केट गिर गई तो गिरते ही अपने दोस्त के पास जाएंगे, उसको ताली देंगे और बोलेंगे मजा ही आ गया यार, कल ही इन्वेस्टमेंट चालू किया, आज ही मार्केट गिर गई। जब तक आप गिरती हुई मार्केट को सेलिब्रेट नहीं कर सकते तब तक आप कभी अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। अब ये सब सुन के आपके दिमाग में इस टाइम पे 3 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सब लोग नोट करिए, क्या 3 क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। पहला पहला हमने बोला सेंसेक्स निफ्टी खरीदते कैसे हैं। आप में से कई लोग क्या बोल रहे होंगे, सॉरी, आप में से कई लोग बोलेंगे यार सेंसेक्स निफ्टी खरीद लो, जैसे प्रांजल सर ने बोला सेंसेक्स निफ्टी खरीद लो। खरीदना कैसे है, ये हमने तो टीवी पे कभी सुना ही नहीं, एक सेंसेक्स देना, 2 सेंसेक्स देना। तो ये पहला क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, क्या ये इनफ है टू मेक मी वेरी रिच, मैं तो बहुत अमीर बनना चाहता हूं, क्या सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी खरीद के बहुत अमीर बन जाऊंगा। और तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, गारंटी क्या है कि आगे भी ऐसा ही रिटर्न मिलेगा, पहले अच्छा रिटर्न मिला है, ये तो पास परफॉर्मेंस है, लेकिन पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो फ्यूचर का रिटर्न मिलने वाला है उसकी क्या गारंटी है। तो हाउ टू बाय सेंसेक्स निफ्टी जो प्रांजल सर का क्वेश्चन था, ये एंड में करेंगे, आज सेशन के एंड में। क्यों एंड में करेंगे, ये तो क्लरिकल काम है, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने से पहले क्या क्रिएट करना है, कन्विक्शन क्रिएट करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो कन्विक्शन क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं, इज बाइंग सेंसेक्स एंड निफ्टी इनफ टू मेक मी वेरी रिच, मतलब क्या मैं सेंसेक्स निफ्टी खरीद के बहुत अमीर बन सकता हूं। तो बहुत अमीर के लिए
सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। कोई बोल रहा है 100 करोड़ मिल जाए तो बहुत अमीर, कोई बोल रहा है 10 करोड़ मिल जाए तो बहुत अमीर, कोई बोल रहा है अगला वॉरेन बफेट मेरे को बना दो तो बहुत अमीर। तो हम तो वॉरेन बफेट फैंस हैं, तो क्या मानते हैं? वॉरेन बफेट जितना अमीर। मेरा क्वेश्चन है, क्या आप सेंसेक्स निफ्टी खरीद के वॉरेन बफेट जितना अमीर बन सकते हैं? उनके पास $100 बिलियन से ज्यादा पैसा है, मतलब करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपया है। क्या आप सेंसेक्स निफ्टी खरीद के इतने अमीर बन सकते हैं? वो समझने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा कि वॉरेन बफेट सर इतने अमीर बने कैसे। तो वॉरेन बफेट सर कितने अमीर, इतने अमीर कैसे बने, वो देखने के लिए उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जा रहे हैं, berkshirehathaway.com। तो berkshirehathaway.com की साइट पे मैं गया और बर्कशायर हैथवे की साइट पे लेटर्स टू शेयर होल्डर्स ओपन किया। सबसे रीसेंट लेटर पे वॉरेन बफेट सर ने, या वॉरेन बफेट सर लेटर्स लिखते हैं, बुक्स नहीं लिखते, लेटर्स टू शेयर होल्डर्स लिखते हैं। सबसे रीसेंट लेटर पढ़ रहा हूं, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करी फ्रॉम द ईयर 1965 टिल टुडे। तो उन्होंने बताया अगर आप मेरे जितना अमीर बनना चाहते हैं या मेरी जर्नी समझना चाहते हैं तो मैंने हर साल कितना पैसा कमाया वो मैंने लिखा है। जैसे पहला 1965 उन्होंने कितना पैसा कमाया, मार्केट वैल्यू ऑफ बर्कशायर में एनुअल परसेंटेज चेंज, सालाना उन्होंने कितना कमाया, उनका सारा पैसा कहां पड़ा है? बर्कशायर नाम के स्टॉक में ही पड़ा है। तो वो स्टॉक उस साल उनकी वेल्थ कितनी बढ़ी? 49.5%। मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए टीम मेरा, अगर आप सर का क्वेश्चन अब मैंने ऐसे कर दिया या तो 49.5%, मतलब अगर आपको वॉरेन बफेट जितना अमीर बनना है तो पहले साल कितना कमाना पड़ेगा? 49.5। अगले साल कितना है? चैट बॉक्स यूज करके बताइए। 3.5 ब्रैकेट में, मतलब पैसा कम हो गया। तो क्या वॉरेन बफेट सर ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया? क्या उन्होंने ये बोला अरे ये तो कभी पड़ता है कभी गिर जाता है छोड़ो? नहीं, वो करते रहे। फिर 13%, फिर 77%, फिर 19%, फिर माइनस हो गया, पैसा कम हो गया, फिर 80%, 8.1%, -2.5, और सबसे इंटरेस्टिंग नंबर तो ये है -2.5, फिर -48.7। मतलब इन्वेस्टिंग के दुनिया के भगवान वॉरेन बफेट, उनका पोर्टफोलियो भी 50% डाउन था। तो क्या उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने बोला स्टॉक मार्केट्स आर प्रॉफिटेबल ओनली बिकॉज दे आर अनसर्टन। मार्केट में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही रहेगा, तभी तो रिटर्न ज्यादा है। जीरो होने का रिस्क नहीं है। कौन सा रिस्क है? वोलेटिलिटी का रिस्क है। तो हमने बोला ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने दिखाया इस उतार चढ़ाव के बावजूद अगर आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे होते इतने साल तो आपका ओवरऑल गेन, बहुत ध्यान से सुनिए, आपका ओवरऑल गेन, ये रहा ओवरऑल गेन फ्रॉम 1964 टिल टुडे। अगर आप वॉरेन बफेट सर के साथ इन्वेस्ट कर रहे होते तो क्या चैट बॉक्स पे मेरे को आप ये पढ़ के लिख के बता सकते हैं कि अगर आप वॉरेन बफेट सर के साथ कभी प्लस कभी माइनस, कभी पैसा बढ़ रहा था कभी गिर रहा था, कभी 49.5 कभी -3.4 अगर कर रहे होते तो आपका पैसा आज कितना हो गया होता? सिर्फ यही कॉलम देखिए सौरभ सर, यही वाला कॉलम देखना है। मुरुगेसन सर का भी कुछ मैसेज था तो मैंने इस तरफ मूव कर दिया उसको। सिर्फ यही कॉलम देखिए और बताइए कितना बन गया होता? 3.6 मिलियन %। मतलब अगर आप वॉरेन बफेट सर के साथ इन्वेस्ट कर रहे होते तो 3.6 मिलियन %, पैसा 36 लाख % बढ़ गया होता। ये पूरा परसेंट में 36 लाख % बढ़ गया होता पैसा। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे मुंह से निकल गया ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये तो भगवान है। तो उन्होंने बोला इस भ्रम में मत पड़ जाना कि मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी हूं। तो मैंने बोला क्यों दिख रहा है एक्स्ट्रॉर्डनरी है? तो उन्होंने अपने लेटर्स टू शेयर होल्डर्स में समझाया इतना पैसा कमाने के लिए अगर आप मेरा सिर्फ ओवरऑल गेन ना देख के कंपाउंडेड एनुअल गेन देखें, यानी सालाना रिटर्न देखें, तो कंपाउंडेड एनुअल गेन कितना है? कंपाउंडेड एनुअल गेन कोई मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है? इतना पैसा कमाने के लिए 3.6 मिलियन % कमाने के लिए साल का रिटर्न कितना चाहिए था? चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। 3.6 मिलियन % कमाने के लिए साल का रिटर्न कितना चाहिए था? बस 20%। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी लेसन नंबर 1, बहुत ज्यादा अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए होता, कम रिटर्न कंपाउंडेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग तो किसी साल वॉरेन बफेट से भी ज्यादा कमा लेते हैं, फिर वॉरेन बफेट से ज्यादा कमाते हैं, 1 लाख को 2 लाख करते हैं, फिर घर से 2 लाख और लेके आते हैं, फिर 4 लाख से जीरो हो जाते हैं, ऐसी कोई गलती करते हैं। तो रूल नंबर 1,
ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मत करो जिसका रिटर्न कितना ही ज्यादा क्यों ना हो लेकिन उसमें जीरो होने का चांस हो। और सेंसेक्स निफ्टी जीरो नहीं हो सकता। और अगर 20% पर एनम मिल गया तो आप कौन बन सकते हैं? वॉरेन बफेट बन सकते हैं। तो यहां पे एक्सेल पे जाके लिख लेते हैं, अगर किसी को वॉरेन बफेट बनना है तो साल का रिटर्न कितना चाहिए? 20% पर एनम। लेकिन 20% पर एनम कौन सी करेंसी में? ये यूएस डॉलर में है, इंडियन रुपी में नहीं है। तो अगर आपको 20% पर एनम यूएस डॉलर में करना है तो इंडिया में अगर आपको वॉरेन बफेट बनना है तो क्या 20% पर एनम से बात बन जाएगी इंडिया में? क्योंकि इंडिया में तो आप कौन सी करेंसी में कमाएंगे? इंडियन रुपी में। तो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के ये बताइए कि क्या आप इंडिया में अगर 20% पर एनम कमाते हैं इंडियन रुपी में तो क्या वो वॉरेन बफेट के 20% पर एनम यूएस डॉलर का होगा? नहीं, क्योंकि यूएस डॉलर कम डेप्रिशिएट करता है और रुपी ज्यादा डेप्रिशिएट करता है क्योंकि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। तो अगर हमारा इन्फ्लेशन 6% है, अमेरिका का इन्फ्लेशन 2% है, तो हमारी करेंसी हर साल 4% से ज्यादा डेप्रिशिएट करती है। तो अगर आपको इंडिया में वॉरेन बफेट बनना है तो आपको रिटर्न चाहिए 24% पर एनम टू केटर फॉर द रूपी डेप्रिसिएशन। अब क्या समझ पड़ गया? इंडिया में किसी को वॉरेन बफेट बनना है तो साल का रिटर्न चाहिए 24% पर एनम। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी ने कितना रिटर्न दे दिया ये कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि अगर सेंसेक्स निफ्टी ने 24% पर एनम दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब सेंसेक्स निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया ये देखने के लिए आपको ये चार्ट देखना चाहिए। और मेरे दोस्त जो हैं वो बार बार बोलते हैं, मेरे कॉलेज में जो प्रोफेसर थे वो बार बार ये बोलते थे, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बियर होल्डर। बी होल्डर नहीं, बियर होल्डर। मतलब अगर आप देखना चाहें कि सेंसेक्स निफ्टी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो बॉटम से चेक कर लीजिए। जैसे अगर मुझे आपको बताना है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो मैं क्या बोलूंगा? अगर 2009 जनवरी में इन्वेस्ट किया होता 8000 के लेवल पे तो आज 2022 में 13 इयर्स बाद 57,000 हो गया होता। पैसा 7 गुना बढ़ गया होता 13 सालों में। अगर मुझे आपको यह बताना है कि सेंसेक्स बेकार इन्वेस्टमेंट है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अगर जनवरी 2008 में 21,000 पे इन्वेस्ट किया होता तो आज 14 इयर्स बाद पैसा 3 गुना भी नहीं हुआ। जिनको खरा अच्छा दिखाना है वो बोलते हैं अगर 9/11 जिस दिन अटैक हुआ था ना उस दिन इन्वेस्ट कर देते तो मार्केट वहां से बहुत बढ़ गई है, बहुत अच्छा रिटर्न है। जिनको खराब दिखाना है वो कैसे दिखाते हैं? अगर 2000 में डॉट कॉम बबल पे इन्वेस्ट कर दिया होता पीक पे तो रिटर्न बहुत खराब होता। तो मुझे इससे आपको क्या समझ पड़ता है? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बियर होल्डर। अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो नीचे से चेक कर लीजिए, अगर आप खराब देखना चाहते हैं तो ऊपर से चेक कर लीजिए। तो लोगों ने बोला फिर कैसे पता करें सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न कितना है? तो सेंसेक्स निफ्टी का रिटर्न देखने के लिए उसके उतार चढ़ाव का इफेक्ट को जीरो करने के लिए बहुत लंबे समय का रिटर्न देखिए। जैसे 1979 से लेके अब तक कितने साल हो गए? 43 इयर्स हो गए। तो कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू रेट नंबर ऑफ पीरियड्स 43 इयर्स मान लेते हैं। पीएमटी पीएमटी जीरो, बीच में कुछ नहीं डाला। स्टार्टिंग में कितने रुपए डाले? 100 रुपीज डाले और आज कितने हो गए? 57,000 हो गए। तो इसका सीएजीआर कितना आ गया? हियर इट इज 16% पर एनम। अभी कहानी पूरी नहीं हुई। दिस इज एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। एक्सक्लूडिंग डिविडेंड मतलब अगर वॉरेन बफेट इन्वेस्ट कर रहे होते तो 24% पर एनम कमाना चाहिए था, लेकिन आपने सेंसेक्स निफ्टी में 16% कमाया, बट दिस इज एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। इसके अंदर डिविडेंड जो कंपनीज आपने 50 कंपनीज खरीदी हैं वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हैं। अगर वो डिविडेंड को भी रीइन्वेस्ट कर दिया होता तो वो 1.5-2% ज्यादा आपका ये 18% पर एनम का रिटर्न मिल गया होता इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो क्या सीखने को मिला? क्या सेंसेक्स निफ्टी खरीद के अगर आप 18% पर एनम कमा रहे होते और वॉरेन बफेट बनने के लिए 24% पर एनम चाहिए थे तो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, क्या सेंसेक्स निफ्टी खरीद के आप वॉरेन बफेट जितना अमीर बन सकते हैं? वॉरेन बफेट बनने के लिए इतने साल में कितना रिटर्न चाहिए था? 24% पर एनम। लेकिन आपका रिटर्न कितना है? 18% पर एनम। तो सेंसेक्स निफ्टी खरीद के क्या आप वॉरेन बफेट जितना अमीर बन सकते थे? डिविडेंड मींस जो कंपनीज आप खरीदते हैं वो कंपनीज बीच बीच में आपको
प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उसको डिविडेंड बोल देते हैं। तो प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, उस प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपके घर में आया बैंक अकाउंट में, उसको भी री इन्वेस्ट कर देते, उसको बोल रहे हैं डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना। तो वॉरेन बफेट तो नहीं बन सकते थे। लेकिन अगला क्वेश्चन मेरा ये है, सेंसेक्स निफ्टी खरीद के हम वॉरेन बफेट तो नहीं बन सकते थे, क्योंकि उसके लिए 24% पर एनम चाहिए थे। लेकिन अगर सेंसेक्स निफ्टी खरीद के मैं और आप अपनी पूरी वेल्थ 18% पर एनम पे कंपाउंड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जैसे वॉरेन बफेट सर ने 20% पर एनम पे डॉलर टर्म्स में कंपाउंड करते गए करते गए करते गए, तो अगर मैं और आप 18% पे अपनी वेल्थ कंपाउंड करते जाएं, तो हम वॉरेन बफेट जितना अमीर नहीं बन सकते, लेकिन क्या अमीर बन सकते हैं? क्या बहुत अमीर बन सकते हैं? मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता दीजिए। मुझे ये बता दीजिए, किरण सर ने तो बोल दिया, आई मैम ने या सर ने, आई डोंट इंटेंड टू बिकम वन, विच इज गुड। अगर नहीं करते तो वैसे भी हमने बोला सर वैसे भी कहां बन रहे हैं वॉरेन बफेट, वो तो खा भी है, तो वॉरेन बफेट तो नहीं बन सकते। लेकिन मैं और आप अपनी वेल्थ अगर 18% पर एनम पे कंपाउंड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो क्या हम अमीर बन सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, बहुत अमीर बन सकते हैं। कितना अमीर बन सकते हैं उसकी कैलकुलेशन मैं आपको अभी दिखाने भी वाला हूं। बट बिफोर आई डू दैट, कन्विक्शन क्रिएट करने के लिए एक क्वेश्चन और रह गया है, और वो क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट इज द गारंटी दैट कंपाउंड मींस 100 रुपए डाले थे, वो पहले 118 हो गए 18%, अगले साल 118 पे 18% मिला, तो मान लेते हैं ये 140 हो गए, फिर इसके ऊपर 18% मिला, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलते जा रहा है, क्योंकि हर साल 18% बढ़ रहा है ऑन द लास्ट ईयर्स वैल्यू। 100 डाले थे 118, या 100 डाले थे तो 120, फिर 120 का 150, फिर 150 के ऊपर 20%, उसको बोल देते हैं कंपाउंडिंग, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेरे मन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द गारंटी दैट दीज काइंड ऑफ रिटर्न्स विल बी रेप्लिकेटेड इन फ्यूचर? भाई पास्ट में अच्छा रिटर्न मिल गया, ये तो पता है। अब आपके घर वाले आज आपको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अरे हमने सीखा सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करो, बहुत पैसा बन जाता है, सिस्टमेटिकली महीने के महीने डालते रहो। तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे? भाई पास्ट में रिटर्न मिला है ना, आगे रिटर्न मिलेगा उसकी क्या गारंटी है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द गारंटी दैट दीज काइंड ऑफ रिटर्न्स विल बी रेप्लिकेटेड इन फ्यूचर? ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स समझनी है, छोटा सा 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। और वो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स? ये आप जैसे लोग जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते और अपना पैसा बचाते हैं, तो पैसा बचा के कहां रखते हैं? तो एक आम आदमी अपना पैसा कहां रख देता है? बैंक एफडी में रख देता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जब आप पैसा अपना बैंक एफडी में पार्क करते हैं, तो बैंक आपसे पैसा बोरो करता है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपने पैसा बैंक में रखा और बैंक उस पर आपको 6-7% का क्या दे रहा है? 6%, 5% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं, एक बार चैट बॉक्स पे लिख दीजिए कि बैंक में आपने जब पैसा रखा और उस पर आपको 6-7% मिला, तो बैंक ने आपसे पैसा बोरो कर लिया, और ये बोरो करके आगे किसी को लेंड किया। किसको लेंड किया? एजुकेशन लोन को लेंड किया, हाउसिंग लोन के लिए लेंड किया, इंडस्ट्री को लोन पे दिया। और ज्यादा किसको लोन देते हैं? कोई बता सकते हैं? एजुकेशन, हाउसिंग, इसमें ज्यादा तो इंडी को ही लोन देते हैं। मतलब बैंक आपसे 6-7% पे पैसा लेता है और इंडस्ट्री को 10%, 11%, 12% पे लोन दे देता है, क्योंकि आपसे 6 पे दिया, आपसे 6 पे दिया और इनको 10 पे दिया, आपसे 6 पे लिया और इनको 10 पे दिया। ये 4% ही तो बैंक की इनकम है। इसको कई बार बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो बैंक ने आपसे पैसा लिया और इंडस्ट्री को दे दिया। इंडस्ट्री में किस किस को दिया बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं इंडस्ट्री में किस किस को दिया? मुकेश अंबानी को दे दिया, फिर और किसको दे दिया? मुकेश अंबानी के अलावा मतलब रिलायंस को दे दिया, टाटा को दे दिया, टाटा के पास बहुत लोन है, भारतीय एयरटेल यानी सुनील मित्तल को दे दिया। इन सबको बेसिकली हमने लोन दे दिया। और लोगों ने बोला सबका नाम लिख रहे हो तो विजय माल्या का भी लिख लो, तो विजय माल्या का भी लिख लेते हैं। तो आपसे पैसा बैंक लेके किसको दे देता है? इंडस्ट्री को दे देता है। फिर मुकेश अंबानी जब पैसा लोन लेता है तो क्या ध्यान रखता है कि अगर मैंने बोरो 10, 11, 12% पे किया हुआ है, तो मेरा इंडस्ट्री का रिटर्न, मेरा रिटर्न बैंक टैक्स चुकाने के बाद, सैलरी देने के बाद, इंटरेस्ट चुकाने के बाद 16, 17, 18% होना ही चाहिए।
अगर 16, 17, 18% नहीं होगा तो मैं काम ही क्यों करूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा था निफ्टी का रिटर्न कितना होता है, 17-18%, क्योंकि इंडस्ट्री बोलती है अगर मैंने लोन लिया है 10-11-12% पे, तो सैलरी चुका के सब कुछ करके मेरे पास 17-18% बचना ही चाहिए। तो आप में से कई लोग क्या बोलेंगे, भाई ये कहानी तो मुकेश अंबानी के लिए ठीक है ना, विजय माल्या के लिए थोड़ी ना ठीक है। तो आप सबको क्या डर लगता है कि आज आपने पैसा स्टॉक मार्केट में डाला और कंपनी क्या हो गई, बैंकरप्ट हो गई, विजय माल्या वाला केस हो गया। तो अज्यूम करिए आज आपने सेंसेक्स और निफ्टी खरीदा, मान लेते हैं मेरे बोलने पे आपने सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, और जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया ये सारी की सारी कंपनीज विजय माल्या हो गई, मतलब बैंकरप्ट हो गई। तो पहले तो मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, अगर सारी 30 कंपनीज मान लीजिए आज बैंकरप्ट हो गई एक रात में, तो क्या होगा, आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो आपने बोला अरे जीरो हो गया, मैंने बोला हाँ। तो आपने बोला उससे अच्छा तो पैसा बैंक में रख लेते। तो मैंने बोला नहीं नहीं सर, अगर ये सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई तो आपने जो पैसा बैंक में रखा है वो भी गया। ध्यान से समझिए क्यों, अगर ये कंपनीज बैंकरप्ट हो गई तो इन कंपनीज को ही तो बैंक ने लोन दिया हुआ था। अगर ये कंपनीज बैंकरप्ट हुई तो आपने जो पैसा बैंक में रखा है, क्या लगता है आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा? नहीं। क्या प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा? नहीं। मैं बहुत बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूं, आपका पैसा बैंक में तब तक ही सेफ है, आपका पैसा बैंक में तब तक ही सेफ है जब तक इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा है। यह सेंटेंस जितने लोगों को समझ पड़ा, मुझे एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। लंबे समय में आपका रिटर्न बैंक में पैसा, लंबे समय में आपका पैसा बैंक में तब तक ही सेफ है जब तक इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा है। इसीलिए हर सरकार का, हर गवर्नमेंट का यह प्राइमरी गोल होता है, यह परम धर्म होता है कि इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रेट से ज्यादा रहे। तो उसके लिए बताइए, तीन फोर्सेस में बार बार बोलता हूं, तीन फोर्सेस लगातार काम करती हैं जो यह ध्यान रखती हैं कि इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रेट से ज्यादा हो। वो तीन फोर्सेस कौन सी हैं? सबसे पहली फोर्स एंटरप्रेन्योर, जान लगा देता है कि आपका रिटर्न बैंक के रेट से ज्यादा हो। ये लंदन वंडन जाने का ख्याल तो बाद में आता है। अगर एंटरप्रेन्योर फेल हो जाए तो मदद करने के लिए कौन आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सोचिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे ध्यान रखता है कि इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रेट से ज्यादा हो। जब एंटरप्रेन्योर पैसा नहीं कमा पा रहा होता तो वो इंटरेस्ट रेट क्या कर देते हैं? नीचे। जब इंटरेस्ट रेट नीचे हुए तो बताइए क्या फायदा होगा? मुकेश अंबानी ने 100 करोड़ का लोन लिया है, 7% के हिसाब से वो 7 करोड़ का क्या भर रहा है? इंटरेस्ट भर रहा है। लेकिन जैसे ही आरबीआई ने रेट 5% कर दिया, अब वो 100 करोड़ पे सिर्फ 5 करोड़ इंटरेस्ट भर रहे हैं। पहला फायदा, इंटरेस्ट बर्डन कम हो गया। दूसरा फायदा, क्योंकि इंटरेस्ट कम हुआ तो पब्लिक की बाइंग पावर क्या हो गई? ज्यादा। पब्लिक उनसे सामान ज्यादा खरीदेगी क्योंकि लोन सस्ते हो गए। और अगर आरबीआई भी फेल हो जाए तो गवर्नमेंट आ जाती है, और गवर्नमेंट आके बोलती है कुछ भी करो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी करो, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ाओ। उसके लिए वो क्या क्या करती है? जैसे पहले वाली सरकार 2G स्पेक्ट्रम फ्री में दे देती है, कोल माइन फ्री में दे देती है। ये वाली सरकार क्या करती है? टैक्स ब्रेक ही दे देती है। बोलती है अभी तक तुम 30% टैक्स पे करते थे, कल से 25% टैक्स पे करो, और 5% जो बचा वो किसका हुआ? इंडस्ट्री का हुआ। सोचिए इंडस्ट्री को ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमाने देते हैं? ताकि वो अपने लोन पे डिफॉल्ट ना करें और बिजनेसमैन के पास हमेशा इंसेंटिव हो कि वो काम करते रहे, क्योंकि उसका रिटर्न बैंक के रिटर्न से लंबे समय में क्या रखना है? ज्यादा रखना है। तो क्या समझ पड़ा कि आज जब आप सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझना चाहिए आपके साथ सरकार भी आपके साथ है, आरबीआई भी आपके साथ है, इंडिया के बेस्ट सीईओज भी आपके साथ हैं, क्योंकि आपका रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए। अब जितना भी मैंने सिखाया, ये करने के बाद आपके दिमाग में इस टाइम पे क्या आ रहा होगा? आप बोलेंगे यार ये समझ तो पड़ रहा है, लेकिन मैं इसको यूज कैसे करूं, प्लान कैसे बनाऊं? तो सबसे ज्यादा हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कहां सिखाई? सबसे बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है बीएसएफ में। डायरेक्टर जनरल के शर्मा सर के अंडर हमने बेसिकली 2016 से 2018 पूरा कैंपेन रन किया बीएसएफ में। 2.5 लाख लोगों को ये फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम कराया गया। सारे बॉर्डर फ्रंटियर्स पे गए, हम खुद जाते थे, फ्रंटियर पे लेक्चर देते थे, सैटेलाइट टेलीविजन के थ्रू फाइनेंस क्लब बनाए, और 2.5 लाख जवानों में से उसके बाद ऑफिशियल डेटा ये कहता है कि 60,000 जवान एंड ऑफिसर्स ने अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी फॉर देयर फ्यूचर।
तो ये जब हमने किया और सक्सेसफुल हुआ तो हमारा नाम टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर किया गया, हमारा नाम इकोनॉमिक टाइम्स में कवर किया गया कि हम क्या कर रहे हैं, जिससे हम फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे स्प्रेड कर रहे हैं। जब ये पॉपुलर हुआ तो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, उनके डायरेक्टर जनरल को हमको सेशन देने के लिए कहा गया कि वो अपने इसमें कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। जब ये सक्सेसफुल हुआ तो अब हमको आर्मी भी बुलाती है, और आर्मी बेसिकली जो रिटायरिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको, जैसे सर ने कहा था, ठाकुर सर ने, मैं 70 का हूं, मैं कैसे पैसे मैनेज करूं, तो हमको बुलाया इसलिए जाता है कि जो 50-60-70 50-60 में होते हैं और रिटायरमेंट लेते हैं, उनको एक कॉर्पस मिलता है, वो अपना कैसा पैसा मैनेज करें, इसके लिए हमको आर्मी में बुलाया जाता है। लेकिन ऐसा हमने उनको क्या सिखाया, और अब हम सीआईएसएफ के साथ भी वैसा ही करने वाले हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के साथ हम सीआईएसएफ के नॉर्दर्न रीजन में पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड कर रहे हैं। और याद रखिए, व्हेन वी डील विद गवर्नमेंट देयर आर नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ऑल। हम 1 रुपया भी नहीं लेते गवर्नमेंट से, एक्सेप्ट हमारा जो लॉजिस्टिक होता है आना जाना, वो गवर्नमेंट पे करती है। अभी ये आपके मन में क्या आ रहा होगा, इनको ऐसा हमने क्या बता दिया कि 2.5 लाख में से 60,000 लोगों ने कर लिया। तो मैं आपको अब वो कैलकुलेशंस दिखा रहा हूं कि मैंने उनको क्या सिखाया। तो स्टार्ट करते हैं अलग अलग एज ग्रुप से। कैसे स्टार्ट करेंगे, किसने बोला हम 70 ईयर्स के हैं, तो उनको लास्ट में भी डील करेंगे उनके प्लान के लिए। पहले किससे स्टार्ट करते हैं, 20 साल के कितने लोग हैं, 30 साल वाले कौन है, 40 साल वाले कौन है। तो 20 साल वालों का अलग बनेगा, 30-40 एक तरह सोचेंगे, और जो 50-60-70 वाले हैं वो अलग तरीके से सोचेंगे। अब ये हम अलग अलग एज ब्रैकेट के लिए कुछ प्लान्स बनाएंगे। तो स्टार्ट किससे कर रहे हैं, 20 वालों से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले 20 साल वाले, तो 20 साल वाले बच्चे मेरे को बहुत मिलते हैं, वो मेरे को बोलते हैं हम कहां से कमाएंगे। तो मैं उनको बोलता हूं दिन भर क्या करते हो कॉलेज में, तो आंसर है कुछ नहीं। तो मैंने बोला कुछ नहीं करते तो शाम को कैफे कॉफी डे ज्वाइन कर लो, बरिस्ता ज्वाइन कर लो, कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो और वर्कफोर्स के साथ जुड़ जाओ। जब आप कैफे कॉफी डे में कॉफी भी सर्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, डोमिनोज में पिज्जा भी डिलीवर करते हैं, तो आप कंट्री और फैमिली के लिए क्या बन जाते हैं, एसेट बन जाते हैं। कैसे बनते हैं एसेट, एक बार देखें। आप जब पिज्जा भी डिलीवर करते हैं तो ये क्या है, सर्विस। एंड जीडीपी का मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अगर आपने सर्विस भी दी तो आपने इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने में मदद किया, तो आप इंडिया के लिए क्या बन गए, एसेट। और उससे जो पैसा आता है उससे अपनी फैमिली के लिए क्या बन गए, एसेट। तो मैंने बोला कंडीशन ये है कि आप या तो खुद कमाएंगे या बचाएंगे। तो लोगों ने बोला बचा कैसे सकते हैं। मैंने बोला Bhavani sir, salute to you. I think many thanks for being in the session with us. तो हमने बोला कि जो लोगों ने बोला सेव कैसे करना है, तो मैंने बोला समझिए आपकी फैमिली आपको गोवा घुमाने ले जा रही है। अगर वो गोवा घुमाने ले जा रही है तो उनको बोलिए सर मेरा गोवा कैंसिल कर दो, वो जो 15-20 हजार मेरे खर्च होने वाले थे वो मेरे को दे दो। तो 50,000 में से 20,000 तो यहीं आ गए। तो 20 साल के बच्चों ने मेरे को बोला चलो अगर तुम्हारे बोलने पे मैंने 50,000 इकट्ठे कर भी लिए और मैं 20 साल का हूं, तो मैं इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करूं, तो किस चीज के लिए इन्वेस्ट करूं। तो मैंने बोला सबसे पहले तो सर क्या करिए, अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर लीजिए। तो बच्चे मेरे को बोलते हैं रिटायरमेंट तो दूर की बात है। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूं वेल्थ और हेल्थ दो चीजें सिक्योर करनी है। हेल्थ आपके हाथ में है, वेल्थ मैं सिखा देता हूं। तो मैं उनको बोलता हूं पहले रिटायरमेंट सिक्योर कर लो, फिर जितना भी पैसा आएगा महीने के महीने उससे एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, रिटायरमेंट कितने साल बाद है, जो आज बच्चा 20 साल का है वो 60 साल में रिटायर होगा। कितने साल हैं उसके पास, 40 साल हैं। तो उन बच्चों ने मेरे को बोला चलो 50,000 इकट्ठे हो गए और रिटायरमेंट के लिए अगर प्लान करना भी है तो ये पैसे मैं कहां डाल दूं। तो मैंने बोला सर कुछ नहीं आता तो कहां इन्वेस्ट कर दीजिए, निफ्टी में कर दीजिए। निफ्टी में कितनी कंपनीज होती हैं, चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, फर्स्ट 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी में। इसका रिटर्न फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए कितना लेना चाहिए, शायद 15% ले तो अच्छा है। लेकिन अगर मुझे बेसिकली अभी कैलकुलेशन दिखानी है तो मैं हिस्टोरिकल डेटा ले रहा हूं। हिस्टोरिकल डेटा तो कितना मिला है,
18% पर एनम इंक्लूडिंग डिविडेंड। लेकिन एक और इंडेक्स होता है जिसका नाम है नेक्स्ट 50। कोई बता सकता है नेक्स्ट 50 में कौन सी कंपनीज होती हैं? नेक्स्ट 50 मतलब 51 से 100। इन कंपनीज का साइज रिलेटिवली क्या होता है? स्मॉलर होता है। क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती हैं, तो जब इकोनॉमी बढ़ती है तो ये